Honorable members, please take your seats. The House will now take up the business listed for today. Item number 1, the One Nation One Election Bill. Honorable Minister for Law and Justice, Kirti Jaiswal, to move the bill for consideration and discussion. Honorable Minister. आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखने के लिए उपस्थित हूं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक समान चुनाव से संबंधित यह बिल विचारार्थ लिया जाए। महोदय, यह बिल प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने, चुनाव खर्च कम करने और बार बार चुनाव से होने वाले शासन में व्यवधान को रोकने के लिए तैयार किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश और राज्यों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया समन्वित तरीके से हो। इस सुधार के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 में संशोधन आवश्यक होगा ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कार्यविधि समान हो सके। चुनाव आयोग को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और सुरक्षा उपायों के साथ संयुक्त चुनाव कराने का अधिकार मिलेगा। महोदय, मैं इस बिल को सदन के समर्थन के लिए प्रस्तुत करती हूँ। धन्यवाद माननीय सदस्य। Honorable members, motion moved. The House will now take up the bill for discussion. अब ये बिल चर्चा के लिए सदन के सामने रखा जाएगा। सभी सदस्यों से आग्रह है कि अपनी समय सीमा से आगे ना बढ़े और अपने समय सीमा जितनी निर्धारित की गई है उतना ही समय तक अपनी बोलने का अवसर का उपयोग करें। धन्यवाद। Honorable members, you all may now proceed with the discussion. I may now invite Honorable Minister for Law and Justice, Ms. कीर्ति जायसवाल, कि वो अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत करे इस विधेयक के ऊपर। Today, I stand before you to speak on a bold and transformative vision, one nation, one election, an idea that reflects not just administrative reform but the spirit of modern, efficient, and progressive India. For decades, India has witnessed continuous elections, sometime every few months. Lok Sabha elections, assembly elections, municipal elections, panchayat elections. The cycle never ends, within which each election, massive resources, money, manpower, security forces, time are deployed again and again. So the question is, should the world's fastest growing democracy keep spending its energy on frequent elections, or should it focus on development, innovation, and nation building? The government in second part, One Nation, One Election, aims to conduct Lok Sabha and state assembly elections together across the country. These means one voter list, one preparation, one election cycle, and 5 years of uninterrupted governance. These reform brings money powerful benefits. It saves time, it saves administrative energy, it ensures stability and accountability, it strengthens national unity. Thank you. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए माननीय सदस्य के माही जी अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य के माही जी। Honorable Speaker, sir, and respected members, today I am here to speak about a very important and widely discussed one nation, one election. India is the world's largest democracy, but in our democratic system, elections for the Lok Sabha and various state assemblies happen different times. This means our country is almost always in election mode. While elections are essential for democracy, frequent elections also bring several challenges. The concept of one nation, one election
aims to conduct all major elections, Lok Sabha, state assemblies, and possibly even local bodies together on the same day or within the same period. This idea is not new. In, in fact, India followed simultaneous elections until 1967. Over time, due to political instability and dissolutions of assemblies, the cycle broke. There are many benefits to holding elections simultaneously. First, it will reduce the massive cost of conducting elections. Every election requires high resources, money, manpower, and security arrangements. With one single election cycle, this burden will reduce significantly. Second, it will minimize disruption to normal public life. During elections, the model code of conduct stops many government projects and decisions. If elections happen together, the government can work without frequent interruptions. Third, it will allow political leaders to focus more on governance instead of being continuously busy with campaigning. This can help improve development policy implementation and long term planning. But despite these challenges, this idea aims to bring greater efficiency, stability, and predictability to our democratic process. It encourages a more focused government, reduced expenditure, and a smoother functioning of our nation. One nation, one election is not just a political reform. It is a step towards strengthening our democracy, whether it becomes a reality or not will cooperation. But it is certainly a thought that encourages us to imagine a more efficient and stable electoral system for India's future. Thank you, Honorable Speaker, sir. Jai Bharat, Jai Hind. माननीय सदस्यगण, आप सदन के अंदर है। सदन के कुछ नियम शैली होते हैं। आप अपने कैमरा बंद करके सदन में नहीं बैठ सकते। अगर सदन चलाना है तो कैमरा ऑन करके बैठिए। हमारे संसद की यही प्रक्रिया है और मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य इस निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए माननीय सदस्य खुशबू पारिक अपनी बात सदन के सामने रखें। धन्यवाद। माननीय सदस्य। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, इस हाउस के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं अपना विरोध रखना चाहती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन। सर चेयरपर्सन, जब जब भारत इलेक्शन मोड में आता है, एक इनविजिबल पर डिवास्टेटिंग चीज होती है। गवर्नेंस ऑफ इंडिया कम्स टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ट्रिगर हो जाता है। हम सब जानते हैं कि ये एक फेयर इलेक्शन इंश्योर करने का रूल सेट है, पर सवाल ये है कि क्या इसके नाम पर फेडरल स्ट्रक्चर को ही अंडरमाइन कर दिया जाएगा? एक इलेक्शन अनेक इश्यूज, इस प्रपोजल को लाए बिना हम कॉन्स्टिट्यूशन की आधी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। आर्टिकल 83, 85, 172, 356 सबको अमेंड करना पड़ेगा, और सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, 50% स्टेट्स को भी रेटिफाई करना पड़ेगा। भारत एक नेशन ही नहीं, एक पैचवर्क है हजारों कल्चर, लैंग्वेज और रीजनल इश्यूज का। और जब इलेक्शंस एक साथ होंगे तो दो अलग इश्यूज, नेशनल और स्टेट, एक ही बैलेट पर चिपक जाएंगे। फिर क्या होगा? रीजनल इश्यूज ओवरशैडो हो जाएंगे। रियलिटी क्या कहती है? ऑन एवरेज 77% चांस होता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में वोटर दोनों लोकसभा और विधानसभा में सेम पार्टी को वोट करेगा। 2014 का एग्जाम्पल सबके सामने है। बीजेपी ने लोकसभा स्वीप की और मोदी वेव ने अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर डिस्ट्रेस जैसे लोकल इश्यूज को दबा दिया। तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में डीएमके इसलिए जीता है क्योंकि वहां के लोग कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कॉपर प्लांट प्रोटेस्ट, एजुकेशन रिफॉर्म्स जैसे लोकल इश्यूज को सुनना चाहते हैं, नेशनल वेव नहीं। 2019 में बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी पर कैंपेन चलाकर 303 सीट्स जीती, पर तमिलनाडु केरला ने फिर भी रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्हें रीजनल इश्यूज पर जवाब चाहिए था। एक साथ इलेक्शन से क्या होगा? वोटर के पास डिससेटिस्फैक्शन दिखाने का मौका ही नहीं बचेगा। एफिशिएंसी तो मिल सकती है, पर अकाउंटेबिलिटी खो जाएगी। और अगर कोई गवर्नमेंट बीच में गिर जाए तो नए गवर्नमेंट को सिर्फ शॉर्ट टर्म टेन्योर मिलेगा। फिर लॉन्ग टर्म कैसे काम करेगी? सिर्फ पावर बचाने में लगी रहेगी। सर, जब बाकी साल चुनाव नहीं होंगे तो क्या ये लोग वर्ल्ड टूर ही करते रहेंगे? पिछले कुछ सालों में 70 से ज्यादा देशों की विजिट कर चुके हैं।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रॉब्लम बताई जाती है, पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जा रहा है। फ्रीबीज और कम्युनल रिमार्क्स दिए जाते हैं दोनों। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है तो स्टेट्स का इलेक्शन स्केड्यूल क्यों चेंज किया जा रहा है? और अगर पैसा ही बचाना है तो एड्स, पीआर, रील्स और फॉरेन टूर्स कम की जाए। माइग्रेंट की याद इन्हें अभी आ रही है, लॉकडाउन और डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर याद नहीं आई थी? और जब बच्चों बच्चों टीचर्स की ओवर ड्यूटी से बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो जब मिड डे मील से अंडे हटाए गए और हिस्ट्री की किताबों से जब हिस्ट्री हटाई जा रही थी, तब इन्हें बच्चों के नुकसान की याद नहीं आ रही थी? ये देश एक यूनिफॉर्म ब्लॉक है, ना ही कि ये देश एक यूनिफॉर्म ब्लॉक नहीं, एक फेडरेशन ऑफ डाइवर्सिटीज है। हर स्टेट का अपना दर्द, अपना मुद्दा, अपनी आवाज है। उसे नेशनल वेव में दबाना डेमोक्रेसी को कमजोर करेगा। विद दिस सबमिशन, सर, आई स्ट्रांगली अपोज दिस प्रपोजल। थैंक यू। धन्यवाद। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिकॉग्नाइज। माननीय सदस्य कीर्ति मेघानी, यू मे प्रोसीड। सर इन्होंने बोला कि फेडरेशन हमारी रीजनल उसमें बाधा आएगी, बट आई फील सर एक फेडरल उसका मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होना। इसका सर मुझे लगता है वन नेशन इलेक्शन होना ही चाहिए। किसी का स्टेट से उससे मतलब नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग स्टेट है तो वो उसका अपना अलग मुद्दा है, अगर उससे वन नेशन से नहीं हो। सॉरी सर, शैल आई आंसर? ऑनरेबल मेंबर। मैडम, आप जो कहना चाह रही है वो शायद ये है कि हर स्टेट फेडरेशन, इसमें फेडरेशन में आपको जवाब दे देती हूँ कि हमारा फेडरलिज्म कैसे इसमें अफेक्ट हो रहा है। इसके हमें हमें कुछ आर्टिकल्स के साथ साथ हमें स्टेट्स को भी रेटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि स्टेट्स के अपने अपने मुद्दे होते हैं, तो उन्हें आप कब कब आंसर करेंगे, कब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी स्टेट की तरफ प्रूव करेंगे? स्टेट के अपने वो मुद्दे होते हैं, वही वो मुद्दे वो अपने खुद ही सेटल कर सकते हैं। उसके लिए दोबारा अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, या फिर हमारे पास वीटो पावर है, वो हम यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर स्टेट को प्रॉब्लम है तो। जी बिल्कुल, पर इस टाइम पे आप साइकोलॉजिकली प्रेशर बना रहे हैं वोटर्स पर, और इसकी वजह से 77% तक चांसेस हैं कि वोटर सिर्फ एक ही पार्टी को वोट करें। और अगर बीच में मुझे लगता है डिससेटिस्फेक्शन हर हो, स्टेट का अपना एक रीजनल उनका वो होता है, उससे मुझे नहीं लगता है कि उसमें इतना इम्पैक्ट पड़ेगा रीजनल उसमें। जी बिल्कुल सदस्य पड़ेगा। साइकोलॉजिकल। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिकॉग्नाइज। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोलना चाहती है, भूमिका। सबसे पहले हमारे माननीय विपक्षी गण से एक महोदया बोल रही हैं कि यहाँ से हमारे जो फंड्स का अलॉटमेंट हो रहा है वो ऐसे ऐसे जगह पे हो रहा है जहां पे कोई यूज ही नहीं होगा। और मैं तो यहाँ तक सुन रही हूँ माननीय सभापति महोदय कि यहाँ पर देश का लोकतंत्र दब रहा है। हर एक वोटर को जब राइट टू वोट का अधिकार दिया हुआ है तो कोई भी प्रूव नहीं कर सकता। पहले तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि हर वोटर को राइट टू वोट का अधिकार जब दिया गया है तो किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बन सकता। और दूसरी बात, जो स्टेट के खुद के जो भी डिसीजंस का जो रेक्टिफिकेशन है, जो भी माननीय जनता सरकार को अलॉट करती है वो वहां की सरकार का ही दायित्व है। आप उसे किसी इलेक्शन के प्रैक्टिस से नहीं जोड़ सकते। ये एक स्टेट की रेक्टिफिकेशन, एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक प्रैक्टिस से जोड़ दिया है, जहां पर आपकी फंड्स का अलॉटमेंट सिर्फ बार बार इलेक्शन ना होने के कारण एक ही बारी में इलेक्शन हो जाए और बाकी सारी की सारी चीजें और अलॉटमेंट आपकी सुरक्षा में लगे, डिफेंस में लगे, एजुकेशन में लगे, आपके फंड्स अलॉट हो आपको की इंप्रूवमेंट करने में, आपकी पॉलिसी अलॉट होने में, उस चीज पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। आप जो बात कह रही हो उसका मुझे कहीं पे भी रेलिवेंस नहीं लग रहा महोदया। मुझे यही जी पता नहीं चल रहा, जी जब जी आपके बिल्कुल। फंड्स अच्छी जगह पे, आपको अच्छी पॉलिसी जब आपको मिलेंगी, आप आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलके काम करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी चीज है, या फिर आप दो सेपरेट डेफिनेशन को एक साथ में मर्ज कर देंगी? जी बिल्कुल।
ऐसा करने से आप सिर्फ ये कहना चाह रही हैं कि आप लोग जो है आप लोग जो है अच्छी जगह फंड को लगा रहे हैं। मैडम, अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन आया भी नहीं है, हमारी सिक्योरिटी पहले से ब्रीच हो रही है। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए पुलिस फोर्स काफी नहीं है, टीचर्स का स्टाफ काफी नहीं है, आप आर्मी को माननीय भी बुलाएंगे। जब आर्मी सदस्य, आर्मी अगर कोई वहां से पॉइंट ऑफ यहाँ ऑर्डर आएगी है तो कृपया तो करके सिक्योरिटी कैसे हमारी सदस्य, जो है माननीय प्रूव होगी कि हमारी सिक्योरिटी सदस्यगण, कैसे बचा पाएगी, बॉर्डर पर क्या कर जी पाएगी माननीय सिक्योरिटी? माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, अगर कोई भी, मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूँ, युवा संसद के नियमों के अनुसार, युवा संसद के नियमों के अनुसार अगर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो कृपया करके आपके कैमरा के सामने एक ऐसे पेपर के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिख के अगर आप कैमरा के सामने प्रस्तुत पेश करेंगी, और जब सदन का अध्यक्ष उसे रिकॉग्नाइज करेगा तब आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्वीकृत किए जाएंगे। तो अगर कोई भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, कृपया इस शैली का ध्यान रखें। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य राजेश बर्मन, कृपया अपनी बात सदन के सामने रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय में मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय जी, जब हम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं तब हमारे मन में पहला जो प्रश्न उठता है, बहुत सारे प्रश्न उठता है, उनमें से ये कि भारत में क्या कभी एक देश एक चुनाव नहीं हुआ था? दूसरी ओर, क्या भारत आज इस क्या पूरी दुनिया में एक देश एक चुनाव नहीं होता है? क्या भारत के पास आज सामर्थ्य नहीं है कि एक देश एक चुनाव हो? ऐसे बहुत सारे सवाल है, हर किसी का जवाब है यस। लेकिन जब हम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, उसके विपरीत जो भी आज हम स्ट्रक्चर देखते हैं इलेक्शंस की, इसके वजह से बहुत सारी चीजों की खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ता है। जो पहले इम्पैक्ट करता है वो है गवर्नेंस पे। जब कोई भी देश, भारत के ही एग्जांपल ले लीजिए, हर हर साल भारत के किसी ना किसी कोने में इलेक्शन होता रहता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि माननीय बहुत नेता सारी प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सदन में हैं तो सदन की मर्यादा अनुसार बैठे रहिए। धन्यवाद। जी मंत्री जी, आप अपनी बात रखिए। जी सर, जब जब भारत के हर कोने में ऐसा बहुत सारे जब इलेक्शन होता रहता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हर समय इलेक्शन मोड में रहता है, जिसके वजह से जो पॉलिसीज जो हर गवर्नमेंट लेके आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकारें हो, जिसके वजह से उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और जब हम विकासशील देश की बात करते हैं, जब हम 2047 में विकसित भारत के सपना देखते हैं, क्या कोई भी देश इस तरह की रुकावट के माध्यम से आगे बढ़ सकता है? उत्तर है नहीं। दूसरी ओर हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करती है, उसके बाद गवर्नमेंट कोई नए तरीके से डेवलपमेंट पॉलिसी लागू नहीं कर सकती। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि जो कोई भी स्कीम लागू होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। दूसरी ओर अगर हम बात करें 2024 में जब इलेक्शन कमीशन ने ऑल ओवर इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराया, करीब 38 करोड़ 3,800 करोड़ स्पेंट। ये बहुत ही ज्यादा है 2014 से। अगर आप 2024 की बात करेंगे, संख्या बहुत है। और करीब 200 से 300 करोड़ हर स्टेट असेंबली इलेक्शन कंडक्ट कराने में जाते हैं। अगर ऐसे हम बात करें तो करीब 28 राज्य इस देश में है, और हर राज्य में करीब इस इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए करीब करीब 8,000 से 10,000 करोड़ खर्च करना पड़ता है, जिसके वजह से हम देखते हैं अगर इस तरह की माननीय सदस्य, खर्च समय सीमा का अगर ध्यान रखें। माननीय सदस्य, समय सीमा का ध्यान रखें। जी अध्यक्ष महोदय जी, आखिर में इतना कहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा कदम है,
जिसके माध्यम से हम गवर्नेंस को हम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। डेवलपमेंट जो कार्य है वो नहीं रुकेंगे, और जो खर्च है वो भी कम होगा, और उस खर्च को हम दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य चैतन्य साय, कृपया अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत करें। Honorable Speaker, sir, and respected members of the House. Today, we gather to discuss a proposal that has been repeatedly projected as a transformative reform, One Nation, One Election. The ruling side presented it as a solution to political instability, administration delays, and financial burden. But as a member of opposition, it is my duty to not merely to oppose but to question, examine, and safeguard the democratic spirit of our republic. Let me clear you everyone one thing. As opposition, we are not against reforms. We are against reforms that weakens our federal structure. In One Nation, One Election, it weakens India's federal structure. India has different states with different needs, problems, and political choices. If all elections are held together, states lose control over their own election timeline. Example, if a state faces a disaster like floods and the government collapse, it may need early election. Under one election, it would have to wait for a national cycle, which is highly impractical and utopian. And national issues will overshadow state issues. When Lok Sabha and state polls happen together, national leaders dominate campaigns. Local issues, small issues are there. Water supply, roads, and employment get ignored. Example, during a national election, voters may choose based on the prime minister popularity instead of judging their state's government. Changing the election cycle is माननीय undemocratic. सदस्य माननीय सदस्य, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आपके खिलाफ एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य कीर्ति मेघानी, आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूछ सकते। माननीय स्पीकर सर, इन्होंने बोला डेमोक्रेसी इफेक्ट होगी। सर अगेन, और इमरजेंसी के समय हम लोग सही तरीके से वो स्टेट को नहीं वो कर पाएंगे, पर हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 360 सारे हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर किसी स्टेट को जरूरत पड़ती है, और हमेशा से ये होता आया है। तो ये कहाँ से ये बोल रही है कि इमरजेंसी में हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से इमरजेंसी में चीजें खराब होंगी? कीर्ति मेघानी, आई थिंक यू नीड टू क्लियर योर बेसिक्स। नेशनल इमरजेंसी में एक्सटर्नल अग्रेशंस को देखते हैं। जब छोटी छोटी इंटरनल में और स्टेट्स में कोई इश्यू आने तो पूरा नेशन को अपने इमरजेंसी लगाने के लिए। एनवायरमेंटल इमरजेंसीज में भी स्टेट मदद मतलब यूनियन मदद करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक यूनिट हैं विद फेडरलिज्म ऐसे हार्म नहीं होता है। इन फैक्ट वन नेशन वन इलेक्शन से बेटर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ गवर्नेंस होगा। माननीय हमारी रेस्पेक्टेड कीर्ति मेघानी जी, पहले आप सुन दीजिए पहले मुझे क्वेश्चन करने के लिए। इफ सपोज मेरा कोई स्टेट में कोई इश्यू आने तो आप पूरा नेशनल इमरजेंसी कैसे लगा सकते हैं? इफ सपोज मेरा स्टेट में क्या बोलते कोई एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यू आते हैं, मेरा स्टेट का इश्यू है, आप पूरा देश को क्यों रोकना चाहते थे? दैट इज माई क्वेश्चन। उसके लिए अलग प्रोविजन है स्टेट के लेवल पे। स्टेट के लेवल में प्रोविजंस है, बट वन नेशन वन इलेक्शन जब आपने शुरू कर माननीय सदस्य, प्रधानमंत्री कुछ बोलना चाहती है फिर से। जैसे हमारी विपक्ष की महोदय हैं चैतन्या जी, हाँ मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, आप जो थ्योरीज बता रही हैं, बट क्या आप बता सकते कि उन छोटे छोटे समस्या को आपको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास बजट कहाँ से आएगा? जो हमारे जो हम देख रहे हैं पार्लियामेंट पिछले मॉनसून सेशन में बार बार एडजर्न हो रहा था। हर एक मिनट 2.5 लाख का खर्चा होता है माननीय सदस्य पार्लियामेंट में, हर सभा में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। उस टाइम पे जो विपक्ष इतना ज्यादा हल्ला मचाता है, उस टाइम पे तो बजट का कोई ख्याल नहीं आता है। उस टाइम पे किसी को ख्याल नहीं आता कि क्या होगा हमारे देश का। परंतु अगर वन नेशन वन इलेक्शन के कारण अगर बजट की सेविंग हो रही है, और हाँ
सुनिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इसके लिए कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स, इसके लिए कुछ ना कुछ हमने ऐसे अरेंजमेंट की है कि हमारे सुरक्षा बलों का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो ढंग से हो। हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लाके हम स्टेट में नहीं डालेंगे। जिस हिसाब से आप बोल रही है फेडरल स्ट्रक्चर हमारा डिस्टर्ब हो रहा है और सब कुछ हो रहा है मैडम। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे अब अगर एक बारी पे इलेक्शन करवाने की वजह से अगर हमारा फंड का अलॉटमेंट सही जगह पे हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और आपने दूसरा पॉइंट ये उठाया था कि पीएम की पॉपुलैरिटी पे वोट माननीय जाएगा। सदस्य, नहीं मैडम, नो। अपनी बातें शॉर्ट में रखिए अपनी बातें। मैं ये कहूंगी कि जनता सरकार को देखती है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। हर किसी को राइट टू वोट है और हर कोई संविधान का पालन करता है, हर कोई अपने हिसाब से वोट देता है। ओके, लास्ट सर लास्ट मैं देखिए। ओके, आप आंसर इन 30 सेकेंड्स। फिर एक लास्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय सदस्य खुशबू पारिक, आपका लास्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ओके, माननीय सदस्य चैतन्य सर, प्लीज क्विक रिस्पॉन्ड क्विकली इन 30 सेकेंड्स। सर, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। इतना क्यों क्यों बजट बजट बोल रही? जब हमारा पूरा देश में कोई इलेक्शंस को लगाने, तो आप सिक्योरिटी का इशू कौन देखेगा? और दूसरी चीज, मणिपुर में क्राइसिस आने टाइम प्रधानमंत्री का मुंह तो बंद है। नहीं, अभी माननीय बोलना सदस्य आप चालू। बैठ जाइए। ऐसे ठीक है। नहीं, आप ऐसे मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है, आप उसी पर सीमित रहिए। सर, बट वो तो घुमा रहे हैं ना बात को। शी इज बीटिंग अराउंड द बुशेस। शी इज सेइंग दैट सर अगर ये बात है तो सर मैं इमरजेंसी का टॉपिक भी रेज कर सकती हूँ। उस टाइम पे माननीय मैं बोल भी सदस्य, सकती हूँ कि सदन लोकतंत्र का गला सदन की घोटा गया था। कार्रवाई को आप ऐसे, अभी आपकी सदन रूलिंग चलने दें। पार्टी माननीय पर्सन ने सदस्य, बोला छोटी छोटी स्टेट में आने तो पूरा देश को इलेक्शन मतलब इमरजेंसी लगाने के लिए, और अभी प्रधानमंत्री बड़े बड़े बात बोल रहे। और दूसरी चीज, माननीय ये लोगों सदस्य, के सदन की, और जो आपने अपने टाइम पे माननीय इमरजेंसी लगाई सदस्य, थी मैम, उसको दिखाइए। नहीं मैम जो हो आपने जाएगा अपने टाइम पे मैडम। इमरजेंसी माननीय लगाई थी, सदस्य, सदन को आपकी ऐसे पार्टी आप, ने देश का गला घोटा है। सदन को बताइए ऐसे आपने क्यों चलने किया दे ये सब आप। कुछ? आप मर्यादा उल्लंघन कर रहे। माननीय माननीय सदस्य, आप सदन को मैडम चलने हम अपनी बात दें। ऐसे रखते तो सदन नहीं मर्यादा को चल सकता। उल्लंघन करते हैं माननीय और आप सदस्य, पार्लियामेंट बैठ एडजर्न जाइए। करवा दें। आपको माननीय सदस्य, नमस्कार हो सदन मैडम, ऐसे आपको नहीं नमस्कार चलेगा। हो। अगर सदन ऐसे नहीं चलेगा, अगर हल्ला मचाना है, आप लोग सदन के बाहर जाके हल्ला मचा सकते हो। सदन ऐसे नहीं चलेगा। सदन चर्चा के लिए है। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए माननीय सदस्य अभी वो लोग बोल रहे मुझे माननीय, नहीं बात आप करने बैठ दो। जाइए, किसी आपको भी समय देश मिलेगा। आप बैठ जाइए, में बैठ जाइए, डेमोक्रेसी सर। आप बैठ जाइए, आपको समय मिलेगा, बैठ जाइए। माननीय सदस्य खयातीबा सी परमार, आप अपनी बात सदन के सामने रखें। Honorable Speaker, sir, and respected member of this House, today I stand not just to speak, but to assert that the time for one nation, one election has come. This is not merely a reform, it is a revolution in the governance. India is a nation of unmatched unity. From the Himalayas to Kanyakumari, from the Thar Desert to the lush Northeast, our diversity is our pride. And in the spirit of unity, Speaker, sir, the truth is straightforward. Frequent elections slow down India. Repeated model code of conduct, constant campaigning, crores of rupees spent again and again, security forced diverted from national duty, and development work pushed at every turn. Is this the India we want? An India busy fighting election or an India focused on fighting poverty, inequality, and underdevelopment? This government has taken bold, historic steps before GST, Insolvency Code, Jan Dhan, UPI, Article 370 reforms, and now One Nation, One Election is another courageous step toward an efficient future-ready India. These reforms means huge saving for the public expenditure, stable uninterrupted governments, policy continuity, and reduced political polarization. Yes, challenges exist. Yes, constitutional changes will be needed, but great nations do not fear challenges. They conquer them, and Bharat is ready, sir. Thank you, sir. Jai Hind. धन्यवाद माननीय सदस्य। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए और माननीय सदस्यगण कृपया ध्यान दें। सदन की कार्रवाई 10 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।
The House stands adjourned until 10 minutes. The House will assemble again after 10 minutes. I now, honorable members, the House is now in session. माननीय सदस्यगण, मैं अभी अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य अमन मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने के लिए। अभी पिछले सेशन में मैं माननीय प्रधानमंत्री और विपक्षी दल की एक नेत्री का तर्क सुन रहा था और पता चला कि विपक्ष को विपक्ष क्यों कहते हैं और पक्ष को पक्ष क्यों कहते हैं। खैर, मैं अपने विषय पे आता हूँ। आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो कहीं न कहीं आने वाले समय में मेरे देश की दिशा और दशा को तय कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन नेशन और वन इलेक्शन की। जब हम चुनावों की बात करते हैं तो सिर्फ वोटिंग की बात नहीं करते। चुनाव का मतलब पूरा वातावरण बदल जाता है और ये कहीं न कहीं बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है कि देश में हर महीने और हर साल में किसी न किसी राज्य में चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं और जब हर थोड़े-थोड़े समय में चुनाव आते हैं तो विकास के बड़े फैसलों की गति रुक जाती है। इसलिए विचार आया कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो तो कितने अच्छे बात होगी। इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदा ऐसे हो सकता है कि विकास पर फोकस होगी, चुनाव पर नहीं। लगातार अब हम जानते हैं आचार संहिता के बारे में, जैसे ही चुनावों के तारीखों के ऐलान होते हैं तो आचार संहिता लग जाते हैं। उससे आचार संहिता लगने से रोड, अस्पताल, शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं बार-बार रुकती हैं। अगर देश का चुनाव एक साथ करा लें, तो आने वाले 5 साल का समय बिना रुकावटों के सरकार काम करती हैं। वैसे ही एक छात्र के लिए जैसे लगातार पढ़ाई करने का माहौल ज़रूरी है, वैसे ही देश के लिए लगातार काम करने का माहौल भी ज़रूरी है। अगला फ़ायदा ये हो सकता है कि पैसे बचेंगे, जनता की भी पैसे बचे और देश के भी पैसे। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक देश है, जो एक बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव कंडक्ट कराता है। हर चुनाव पर हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब कोई युवा ये जानना चाहेगा कि इतनी बड़ी रकम अस्पताल, सड़क और स्कॉलरशिप या टेक्नोलॉजी पर लगे या बार-बार चुनाव कराने पर लगे। राजनीतिक स्थिरता भी इससे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होती है। बार-बार चुनाव होने से पार्टियों का फ़ोकस विकास के जगह पे राजनीतिक रणनीति बनाने पे ज़्यादा होता है कि कौन-सी स्टेट में किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, चाहे जिससे उनकी पार्टी वहाँ पे अपनी सरकार बना सके। इससे बढ़िया हो कि एक बार ही चुनाव करा लिया जाए, ताकि पूरे देश में विकास पे ज़्यादा बात हो, इन चुनावी मुद्दे पर भी, और जनता को भी साफ तस्वीर मिल जाती है। कई बार राज्यों और केंद्रों के अलग-अलग चुनावी मौसम में मुद्दे भी अलग हो जाते हैं। एक साथ चुनाव हो जाने से जनता को पूरा देश और एक समय पर देख पाएगा कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं बहुत मजबूती से समर्थन देता हूँ अपने सरकार को इस वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए। और एक सलाह विपक्ष को भी, जब आप एक उँगली सरकार की ओर उठाते हैं, तो बाकी की 4 उँगलियाँ आपके ओर भी उठ रही होती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिकॉग्नाइज। माननीय माननीय सदस्य शिव ज्योतिनाथ, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर संक्षेप में पूछें। मैं मेरे ऑपोजिशन लर्नेड ऑनरेबल एमपी को मैं बोलना चाहूँगा। आपने बोला थोड़ी देर पहले जो कि इलेक्शन होने के पश्चात कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जो जो कि बात सही है, व्हिच इज एवर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। तो सर जी, आपका जो स्टेट में रिसेंटली स्टेट का इलेक्शन हुआ, बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट लगा और नीतीश जी ने 10,000 रुपया करके महिला के अकाउंट में घुसा। माननीय सदस्य मुद्दे पे रहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का है, तो कोड ऑफ कंडक्ट अगर लगा तो कोड ऑफ कंडक्ट का रीति रिवाज के आपका स्टेट में एक है, मेरा स्टेट में एक है। मैं जहाँ पावर में नहीं हूँ इसमें कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आप जहाँ पावर में हो इसमें कोड ऑफ यही बहुत बड़ी समस्या है विपक्ष की, मुद्दे से हट के बात करना। मुद्दा से हट के नहीं। आपका आवाज क्या, आपका आंसर क्या मिलेगा इसमें? आपका क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का तो
निचोड़ के रख दिया आप लोग ने, और क्या इसमें बाकी है? कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने की बात ही नहीं है साहब। इसीलिए एक सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है कि पूरा देश विकास की ओर अग्रसर हो, बजाय कि तो राजनीतिक ठीक है, रणनीति विकास की बनाने ओर के आप लिए। बढ़ेंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट जो बात बोली आपने, इसको टॉपिक से हटा के मैं बात कीजिए ना। मैं कोड ऑफ ये कंडक्ट नहीं बात कह बोल रहा। दिया, इसके बाद गवर्नमेंट माननीय उसका सदस्य माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुने। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नियमों को खत्म कर दिया जाए, बल्कि एक और सकारात्मक प्रयास कैसे किया जाए कि हमारी और व्यवस्था और कितना सुदृढ़ हो सकारात्मक जाए। करेंगे, और कितना कितना सकारात्मक होगा कोई भारत, कुछ क्या होगा? कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इसके बाद गरीबों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है सरकार की ओर से, और सकारात्मक ये नीतियां देखिए, ज्ञान और ये कितना दिन आपके देंगे लोग को? कितना दिन लोग को कितना आप लोग ये आपके सवाल से ही इतना उदासीनता और निराशाजनक झलक रही है। खैर, क्या किया निराशा तो जाए। आएगा ना, निराशा तो हम्म। आएगा, निराशा तो आने का, जो राम को लाएगा, राम को माननीय लाता है सदस्य, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ला, ला प्रधानमंत्री चुका जी है। से कुछ बोलना चाहती है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी, तो राम को आदमी होके राम को बोलता है, प्रधानमंत्री राम जब को हमने ला प्रधानमंत्री जवाब दे महात्मा रही है। जी, ये समझ में नहीं आता जब बात यहाँ पर एक इलेक्शन को लेकर हो रही है, जब यहाँ पर सरकार का चुनाव कुछ जनता करिए, कोई भला फुसला नहीं रहा, कोई भला फुसला नहीं रहा। आपने ये राजनीति ईवीएम पे भी की थी, आपने चुनाव आयोग को ही बोल दिया कि वो सबसे बड़ी धोखेबाज है, पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए तो जहां पर आपकी सरकार जीत रही है वहां पर नो धोखाधड़ी, बाकी सब की सब ओके धोखाधड़ी है। माननीय आप सदस्य, अपने एक आप देश बैठ को जाइए। अपने आप हिसाब से बैठ ही जाइए। चलाते हैं। माननीय सदस्य खुशबू दे पारिक, दीजिए ना हमको मौका, पॉइंट ऑफ एक बार ऑर्डर, मौका दे पॉइंट के ऑफ ऑर्डर। दीजिए ना। जी जी, और ना देखिए इसीलिए हम ना इसीलिए आज बोलता सरकार हूँ कौन सदस्य बनाएंगे, कौन बैठ मौका सा जाइए। आपको लाके देखिएगा। दे सके। सदस्य बैठ इसीलिए जाइए। विपक्ष सदस्य की बैठ नेताओं, जाइए। आप पे बोलता हूँ कि खुशबू अगर आप पारिक जी, एक उंगली पॉइंट ऑफ किसी पे ऑर्डर उठा है, रहे हैं तो पॉइंट ऑफ बाकी की ऑर्डर। 4 उंगलियां आप पे भी माननीय उठ रही हैं। सदस्य, उनको बोलने हाँ, दीजिए। इसलिए तो सदन, भगवान ने उंगलियां दिया हमको, माननीय इधर सदस्य, उठाने के लिए। हम मेंटेन तो द बोलते डेकोरम ऑफ उठाओ द उंगलियां, हाउस। हम सदन तो ऐसा ऐसे नहीं नहीं बोलेंगे, चलेगा। कभी भी नहीं बोलेंगे हम राम सदन, को ला लिया, राम लेट द भगवान को हमने हाउस खुद रन प्रतिष्ठा कर लिया, ऐसा हम नहीं इन द बोलेंगे वेल ना कभी भी। फॉर्मेट। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिस सबको अपनी राज्य में बात बोलने आपकी का मौका सरकार हो, मिलेगा। वहां पे कोई बैठ धोखाधड़ी जाइए। नहीं होती, और जिस माननीय राज्य में सदस्य, आप बैठ, हार जाते आप हैं बैठ जाइए। वहां क्यों पे आपको हंगामा चीटिंग मत नजर आती मचाइए? है। हंगामा मत करिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हंगामा मत करिए। खुशबू पारिक, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, अभी अभी उन्होंने बोला कि टाइम बचाने की बात करी थी, तो सर ये है कि जब इलेक्शन नहीं भी थे, नॉन इलेक्शन टाइम पे भी इन्होंने रैलियां करी है। और किसने बोला है कि जब इलेक्शन, जिस स्टेट में इलेक्शन है वहां पर जाके आपको फीता काटने की जरूरत है? किसने बोला है कि आपको जब टाइम है तब आपको रिश्ते निभाने की जरूरत है? जब टाइम है तब आप काम कीजिए ना। उसके अलावा जब इलेक्शन का टाइम आता है तब आप बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, टाइम नहीं बचता, टाइम नहीं बचता। जब टाइम होता है तब आप देश में नहीं होते। और वेलफेयर और डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो किसने बोला कि मतलब रिश्ते निभाइए? किश्ते किश्ते बाकी है देश की, उस पर ध्यान दीजिए। रिश्ते बाद में भी निभा लेंगे। जी। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा शोभित प्रकाश अपनी बात सदन के सामने रखिए। हेलो, आई एम ऑडिबल? जी जी, आप ऑडियो, हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पे बोलने का। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका ये सदन चर्चा कर रहा है। जैसा कि सरकार के द्वारा ये करा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी जा रही है, तो मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ स्पीकर महोदय कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रधानमंत्री जी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है वो भी बहुत इफेक्टिव है, उससे भी अभी हल निकल रहे हैं, तो अभी इतनी जल्दी क्या है उस चीज को डालने की। दूसरी बात सभापति महोदय, मैं आपके बाद ये ध्यान लाना चाहता हूँ कि बात एक्सचेकर के पैसों की हो रही है, बात टैक्स पेयर के मनी की हो रही है। तो ये सरकारी खर्च से जो बड़े बड़े फोटोएं लगती हैं, जो स्कीम का प्रचार होना चाहिए, उसकी जगह जो प्रधानमंत्री महोदया की बड़ी बड़ी फोटोएं लग रही हैं, उससे क्या पैसा नहीं खर्च हो रहा है? क्या क्या प्रिंट मीडिया में बड़े बड़े एक पन्ने का विज्ञापन दिया जा रहा है जिसकी कीमत हजारों रुपए में होती है, उसमें पूरे देश में विज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो क्या 1,000 करोड़ रुपए नहीं लग रहे हैं उसमें? सभापति महोदय, मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ इस सदन के सामने। 2020 और 21 में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पे 349 350 करोड़ खर्च किए, और इलेक्शन के टाइम ये बढ़ के 650 करोड़ बढ़ जाता है। सभापति महोदय, मैं लॉ कमीशन
के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो रिकमेंडेशन उस पर लाना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा कि मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं है, उसको कोई भी लीगल बैकिंग की नीड नहीं है, वो अभी सबसे मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है। तो ये क्या कैसे इफेक्टिव है, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि जब ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये बातें बोली। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबको पता है क्या हो रहा है, जहां पे विपक्ष की सरकार है वहां पे लिए नियम अलग है, जहां पे सत्ताधारी पार्टी है वहां नियम अलग है। चलिए हम एक बात को ये बात मान भी लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा होगा, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कितने राज्यों में चुनाव हुए? हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, सबसे ज्यादा बिहार में चुनाव हुए। तो हरियाणा का चुनाव अलग हुआ, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड का चुनाव एक साथ हुआ, दिल्ली का चुनाव अलग हुआ और बिहार का भी हुआ। अगर वन नेशन वन इलेक्शन इतना ही इफेक्टिव है, इतना ही सत्ताधारी पार्टी को अपनी बात पे भरोसा है, तो क्यों नहीं उसने ये सारे चुनाव एक साथ करा लिए? जब आप अभी जो असेंबली इलेक्ट हुई है या जो अगले साल चुनाव होगा इलेक्ट होंगी, उसको लेके जब आप डिसॉल्व करने के लिए इतने उत्तेजित हैं, तो इन सबको आप पहले क्यों नहीं कर सकते? ये दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अपना मोटिव, अगर समाज में प्रधानमंत्री जी के लिए या प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लिए अगर एक अच्छा भाव है, तो उसको बढ़ाने के लिए, स्टेट के मुद्दों को हटाने के लिए, और ये सब करके माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा पूरा करना चाह रही हैं। प्रधानमंत्री, धन्यवाद। ओके ओके, एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ऑनरेबल मेंबर सत्यांश पाठक, आप अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद सर। पहले तो मैं विपक्ष दल से कहना चाहूंगा कि अपने डर के चश्मे को उतार के आप ये जान लें कि यहाँ पे किसी के ईगो सेटिस्फैक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि हम लोगों का एजेंडा ही डिफरेंट है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। हमारे जो तर्क रखे जा रहे हैं उससे आपके तर्क बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आप जो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पैसा खर्च करते हैं मीडिया पे, बहुत सारे पब्लिक हाउसेस पे, तो क्या आपके पार्टी के लोग नहीं करते हैं? क्या आप खुद नहीं करते हैं? आप तो इसके लिए काफी जाने माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अक्सर हर एक पार्टी के पास वो हक होता है कि वो अपना प्रचार करे, और प्रचार करना कुछ गलत नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जितनी अभी तक स्कीमें लागू करी हैं वो सब कहीं ना कहीं चली हैं, और वो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से देखा जाए तो हर जगह वो प्रधानमंत्री ने देशवासियों को फायदे में ही ध्यान दिया है। तो आपका ये कहना कि ये केवल एक प्रधानमंत्री का ईगो सेटिस्फैक्शन है, ये बात आपकी वो तर्क को पूरा नहीं करता। ओके, देखिए माननीय सदस्यगण, जैसा कि हमारे युवा संसद के नियम है, अगर किसी सदस्य को पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना है तो उसकी एक प्रक्रिया है। अगर आप उस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएंगे। तो सदस्यों से निवेदन है कि उस शैली का ध्यान रखा जाए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, फिर से प्रधानमंत्री जी कुछ बोलना चाहती है, बोलिए। प्रधानमंत्री को 24 घंटे है कुछ बोलने का। और क्या, हम तो जनता को जवाब देने के लिए हम आगे ही रहते हैं। बट हमने जो काम किया उसका तो जवाब हम देंगे ही ना, आपको भी बताएंगे। अगर आपको नहीं सुनना तो आप हमेशा की तरह संसद से वॉकआउट कर देते हैं, उसमें हमारी क्या गलती है, आप बताइए ना महोदया। सुनते प्रधानमंत्री जी, मैडम जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे कीजिए अरे ना मैडम, बोलने दीजिए, मैं बता जनता रही के हूँ, सामने प्रेस बोलने कॉन्फ्रेंस दीजिए। कीजिए। बात ये है कि अरे अरे सुनिए इधर सुनिए, देखिए देखिए, घर में बैठ के और चैम्बर में माननीय बैठ के शोभित चार जी, पांच चुने जाने माननीय शोभित जी अरबपतियों को मेरे लेके बहुत मीटिंग अच्छे करने से मित्र, कैसे हो? नेता नेता विपक्ष के नेता हैं। मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप ईगो की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, आप जो गालियां देते हो तो सही लेते हैं हम सबके सब। वैसे खेलो इंडिया से अच्छा एम्बेसडर आपकी सिवाय को हो ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स के साथ में गेम, वाह क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैं तो बोलूंगी। अच्छा, अगर घोटालों की बात हो रही तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, नेशनल हेराल्ड केस याद है आपको? माननीय प्रधानमंत्री जी बैठ जाइए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी, मुद्दा क्या है, आप क्या बोल रही है? बैठ आप जाइए, हर आप बैठ मिनट जाइए, बैठ जाइए आप। 2.5 करोड़ लाख जनता का वेस्ट करते हैं संसद को एडजर्न करके, अपनी ईगो की वजह से वॉकआउट करके। उसका जवाब दीजिए ना, है आपके पास जवाब?
मैडम है, आपने अभी तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं शुरू किया, और जितना बिल्स आ गए स्टेट से वो कभी आपने ध्यान भी नहीं दिया। एग्जाम्पल हाँ तमिलनाडु, जी, प्लीज अब मेरे पास भी इसका जवाब है। देखिए, अगर आप पार्लियामेंट एडजर्न नहीं करते रहेंगे ना, आप सभापति को मानेंगे, तो कैसे पास होगा? आप नॉर्मल बिल ही नहीं पास होने देते, आप प्राइवेट मेंबर्स का कैसे बिल पास ओके, करवाएंगे? बताइए। माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष के आप नेता प्रतिपक्ष, आप 30 सेकंड में अपना रिप्लाई पेश करें सदन के सामने, फिर हम आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि हम बार बार सदन का वॉकआउट कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ताधारी पार्टी की है कि अपोजिशन की पार्टी है? आप अपना समय भूल गए कि आपने कितना सदन से वॉकआउट किया है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप श्रद्धेय अरुण जेटली जी ने ये बात बोली थी कि जब सत्ताधारी पार्टी सुनने से नकार देती है तो विपक्ष का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो सदन का वॉकआउट करे। हम ये बात देश की जनता को बताना चाहते हैं कि ये सरकार एक फासिस्ट सरकार है, डिक्टेटरशिप चल रही है प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे, जो किसी की नहीं सुनना चाहती, जो सिर्फ अपनी ईगो की करेंगी। धन्यवाद। सही। ओके, सही। बैठ जाइए सदस्य, तो सदस्यगण आप लोग बैठ जाइए, आगे सदन की कार्रवाई को प्लीज, आगे। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप बाहर जाके जो आप देश की बुराई बाहर जाके करते हैं, बाहर की कंट्रीज में, आप बोलते हैं बाहर की कंट्रीज में कि इंडिया में नहीं, नहीं, लोकतंत्र नहीं है, मुद्दे आप पे यहाँ पर रहिए, आवाज नहीं स्टिक ऑन उठाते, द पार्लियामेंट टॉपिक। एडजर्न करते हैं, वो माननीय भी गलत सदस्य, है। स्टिक ऑन द टॉपिक, जो मुद्दा है उस पे बात करिए आप लोग, बैठ जाइए। सदन जी, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य माननीय सदस्य सुहानी जोशी अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत कर। माननीय सदस्य सुहानी जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि बार बार होने वाले चुनाव देश की विकास की गति को धीमा कर देते हैं। हर कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य में चुनाव की घोषणा हो जाती है और उसके साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिससे सरकारी कार्य रुक जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस रुकावट को समाप्त करेगा और लगातार वह स्थिर शासन प्रदान करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारी इससे आर्थिक बचत होगी। आज चुनाव कराने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सुरक्षा, व्यवस्थापन, ईवीएम प्रचार आदि, पर पूरे देश में एक साथ चुनाव हो तो यह खर्च बहुत कम हो जाएगा और यह धन जन कल्याण योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य सुविधाओं पर भी यह धनराशि लगाई जा सकेगी। तीसरा मुद्दा यह कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी इससे देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे बार बार अगर चुनाव होंगे तो इसकी वजह से सुरक्षा बलों को लगातार चुनाव ड्यूटी पर लगना पड़ता है। यदि चुनाव एक साथ होंगे तो सुरक्षा बल अपने मूल कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से लगाए जा सकेंगे। अगला मुद्दा मैं यह प्रस्तुत करूंगी कि इससे जो मतदाता हैं, जिनकी अधिक उम्र है, जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते हैं, उन्हें ऐसे बार बार होने वाली इलेक्शन की प्रक्रियाओं से परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो बार बार मतदान केंद्रों तक जाने में बहुत कठिनाइयां महसूस करते हैं, तो इससे मतदाता सहभागिता भी बढ़ेगी। अंत में यह कहना चाहूंगी कि वन नेशन वन इलेक्शन यह कोई रूलिंग पार्टी का कोई ईगोइस्टिक एजेंडा नहीं है। यह बस भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक पहलू है जिसमें हम विपक्ष दल का साथ चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ओके, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिकॉग्नाइज। माननीय सदस्य शर्मिष्ठा दत्ता, प्लीज आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर शॉर्ट में पेश करें। मैं अपने रूलिंग पार्टी मेंबर से ये पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बुजुर्ग लोगों को वोट देने बार बार नहीं जाना पड़ेगा, तो क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा सिस्टम निकला है जहाँ से जो 85 इयर्स के नीचे जो बुजुर्ग है वो लोग घर में बैठ के वोट दे सकते हैं?
और मेरा दूसरा सवाल ये है कि शिक्षा सुरक्षा कर्मियों को जो बार बार काम मतलब वोट देने के काम में नहीं आना पड़ता है, तो क्या इसी उन बचत और इनके काम में आना ना आना और सुरक्षा में प्रॉब्लम आना क्या सिर्फ हम वन नेशन वन इलेक्शन लाके ही सॉल्व कर सकते हैं? सही बात। और दूसरी बात ये कि क्या शिक्षा और सुरक्षा और बाकी सारे फैक्टर्स में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने से ही माननीय पैसे की बचत सदस्य, हो? शॉर्ट में रखिए, शॉर्ट में। ओके, ओके। मेंबर, यू वांट टू रिप्लाई एनीथिंग? सर ठीक है, मैं कुछ ऐड। अच्छा, आपको बोलना है। ओके, बोलिए जी। सर अभी जो मेंबर बोलते बोलते ये बोला, जो हमने एक ही बार इलेक्शन होने तो ओल्ड पीपल भी आके उधर वोट कर सकते हैं, बट हमारा अपोजिशन से एक पर्सन ये भी राइज किया कि हम खुद उधर जाके उनसे वोट लेते हैं। और आपको एक छोटी कहानी पता, जब हमारी गवर्नमेंट चल रही तब की बात है, गिर नेशनल फॉरेस्ट, इतना थिक फॉरेस्ट में एक ही मतलब बीच में एक ही पुजारी होते हैं, उनके लिए पूरा बैलेट लेके फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं उनका वोट लेने के लिए। दैट इज अ सिस्टम प्रिवेल्स इन आवर गवर्नमेंट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिकॉग्नाइज माननीय सदस्य कीर्ति मेघानी। मैं अपोजिशन मेंबर को ये बोलना चाहूंगी कि ये जो भी आपने बताया कि कैसे उनको इलेक्शन में ले जाया जा सकता है, वो उनका पर्सनल मुद्दा है। इसमें हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आप प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दे से वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट। एक्चुअली ये बता रहे आपकी जो मेंबर रूलिंग पार्टी की मेंबर ही कुछ घुमा दिया। शी इज टेलिंग दैट हमारी गवर्नमेंट में वन नेशन वन इलेक्शन होने तो सो वोल्ड पीपल आल्सो विल कम, वो भी वोट करेगा वही टाइम में, सो क्षमा करने के लिए कोई जरूरत नहीं। हम हमारी प्राइस कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट जब चल रहे तब गिर फॉरेस्ट में बीचों के लिए एक ही पुजारी के लिए पूरा बैलेट चलते हैं, क्योंकि वी रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी। एक वोट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, माननीय आयुषी निगम अपनी बात सदन के सामने रखें। ओके, आई स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, मैं एक स्वतंत्र प्रत्याशी आज इस लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर अपनी स्पष्ट और संतुलित प्रस्तुति रखना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य किसी दल का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में एक तार्किक, व्यवहारिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुस्तरीय, विशाल और विविधताओं से भरा लोकतंत्र है। ऐसे देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन आज राष्ट्रीय विमर्श का केंद्रीय बिंदु बन चुका है। यह केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था, संघीय संरचना और जन सहभागिता से जुड़े कई संवेदनशील प्रश्न उठाता है। पहला, बार बार होने वाले चुनाव से प्रशासन और सरकारी मशीनरी पर भारी दबाव पड़ता है। इफ ऑल इलेक्शंस आर सिंक्रोनाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी। बार बार की आचार संहिता से विकास कार्य रुकेंगे नहीं और गवर्नेंस कंटिन्यूटी बनी रहेगी। दूसरा, लगातार आयोजित चुनावों से राजनीतिक दलों पर का ध्यान ज्यादातर इलेक्टोरल कैलकुलेशंस में लगा रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन से निरंतर नीति निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और सरकारें दीर्घकालिक योजनाएं पर ध्यान दे पाएंगी। तीसरा, विपक्ष और सरकार दोनों के लिए चुनाव व्यय में भारी कटौती संभव है। A single consolidated electoral exercise could significantly reduce campaign expenditure, security deployment and logistical costs. लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक लोकतंत्र का मूल्य सिर्फ दक्षता, एफिशिएंसी में नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संतुलन में भी निहित होता है। पहला, भारत राज्यों की अपनी साइमल्टेनियस इलेक्शंस में डाइल्यूट फेडरल ऑटोनॉमी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे के आगे राज्य मुद्दे दब जाते हैं। दूसरा, यदि किसी राज्य में सरकार गिर जाए तो क्या होगा? विल बी फोर्स प्रेसिडेंट्स रूल टिल द नेक्स्ट सिंक्रोनाइज किया गया तो यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार होगा। तीसरा, लगातार शोध बताते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस में क्रिएट अ नेशनल वेव इफेक्ट।
जिससे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व कमजोर पड़ सकता है, जो कि भारतीय लोकतंत्र का प्लूरलिज्म का की नींव है। अध्यक्ष महोदय, neither blind acceptance nor blanket rejection is the solution. हमें ना सुधारों से भागना चाहिए, न संविधान के मूलभूत सिद्धांतों से समझौता करना चाहिए। यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना है तो संवैधानिक संशोधन सर्वसम्मति से हो, राज्यों की स्वायत्तता सुरक्षित रहे, मिड टर्म इंस्टेबिलिटी के लिए वेल डिफाइंड कंटिजेंसी मैकेनिज्म है, जनता की वास्तविक भागीदारी प्रभावित ना हो, क्षेत्रीय दलों को बराबरी का मंच मिले। अध्यक्ष महोदय, भारत का लोकतंत्र एक नदी की तरह है, बहुत मेंबर दिशाओं, प्लीज धाराओं कंक्लूड। और स्वरों का संगम। यस सर, यस सर। हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो, जो गवर्नेंस को मजबूत करे पर फेडरलिज्म का कमजोर ना होने दे। एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं ना पक्ष में खड़ी हूँ ना विपक्ष में, मैं संविधान और जनता के पक्ष में खड़ी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए माननीय ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल डेप्यूटी एलओपी सिंस लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा नहीं है, माननीय डेप्यूटी एलओपी शर्मिष्ठा दत्ता फ्रॉम राज्यसभा, आप अपनी बात प्रस्तुत करें। Honorable Speaker, I rise today to address a question of immense constitutional significance. Are we simplifying democracy or silently sidelining it? The government asserts that one nation, one election will reduce expenditure, improve administrative efficiency, and minimize repeated deployment of law and order machinery. These points have been highlighted in official discussions. However, Honorable Speaker, we cannot place democracy on a cost-benefit chart. Democracy is not a tender to be floated. It is a participatory process that requires continuous engagement and accountability. India is a farmer of Maharashtra, a fisherman of Tamil Nadu, a youth of Assam, a trader of Punjab, and union of all traders, all Indians. Our issues are diverse. Our aspirations are varied. Experts have clearly cautioned that simultaneous elections will lead to national issues overshading regional and local concerns. Regional parties, which represent significant sections of our society, may lose their space. Local grievances risk become mere ad breaks between national narratives. Honorable Speaker, I seek clarity from the government on a few fundamental constitutional contingencies. First, if a state government collapses mid-term, what is the proposal of course of action? Second, in the event of a hung assembly, will the entire nation be pushed back into election mode? And the third is, or will prolonged president's rule will be treated as an acceptable interim arrangement? The proposal lacks clarity and demands multiple far-reaching constitutional amendments. Such constitutional uncertainty cannot address through mere administrative convenience. The government's principal justification is cost-saving. But Honorable Speaker, democracy is not meant to be inexpensive. It is valuable precisely because every voice carries worth. But Honorable Speaker, therefore, the true concern is not one election, but one narrative. Not administrative reform, but asymmetric advantage of dominant parties. We support Ek Bharat, but we cannot address Ek Rang Ka Bharat. Unity is our strength. Uniformity is not our identity. We cannot dilute it for administrative convenience. Hence, Honorable Speaker, I respectfully and firmly oppose the proposal of one nation in one election. India does not require one election. India requires every voice to be heard. We all Indians to stay united. Thank you. Point of order recognized. माननीय सदस्य कीर्ति मेघानी, please. सर, माननीय पोजीशन ने हमें बोला डेमोक्रेसी खराब हो जाएगी। डेमोक्रेसी क्या होता है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी तब स्ट्रेंथन होती है जब गवर्नमेंट अच्छे से गवर्न हो सकती है, वोटर्स वोट करते हैं। इसका अलग अलग इलेक्शन करने से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है।
तो इससे हमारी सबसे पहली हमको बात ये सबसे जो पहली बात तो मैंने बोली ही नहीं कि डेमोक्रेसी खराब हो जाएगी। मैंने कब बोला डेमोक्रेसी खराब हो जाएगी? आपने पॉइंट ऑफ शुरू में ऑर्डर पूछने से पहले स्पीच ढंग से सुनना पड़ता है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि डेमोक्रेसी खराब हो जाएगी। आई सेड डेमोक्रेसी को साइडलाइन कर दिया जाएगा, ना कि डेमोक्रेसी खराब हो जाएगी। साइडलाइन भी कर दिया जाएगा तो साइडलाइन कैसे होगी डेमोक्रेसी? आप ये बताइए, पीपल कैसे साइडलाइन होंगे? वोटर्स तो वोट करेंगे ही। कॉस्ट सेविंग है तो क्या ये कॉस्ट सेविंग है, ना कि जनता का हित? इस तरह से डेमोक्रेसी साइडलाइन नहीं होगी तो क्या होगी? सिर्फ बचत। हमारा मेन आप मुद्दा सोच रहे हैं कॉस्ट कि आप सेविंग ही नहीं, एजुकेशन पे, एफिशिएंसी, आप लॉन्ग सोच टर्म रहे हैं आप विजन है। एजुकेशन पे, शिक्षा पे, और ताकि जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं उनका टाइम ना वेस्ट हो और खर्चा ना वेस्ट हो, इसीलिए आप कॉस्ट सेविंग पे ध्यान दे रहे हैं और ना कि जनता के हित पे। आप बताइए अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल डाल देते हैं, मान लिया आप डाल देते हैं, बट डालने से जब किसी रीजन में प्रॉब्लम होगी तो आप फिर से इलेक्शन करवाएंगे, और जब आप फिर से इलेक्शन करवाएंगे तब कितना कॉस्ट जाएगा? तब खर्चे की बात कहाँ आएगी? अगर आप एक बार में 2 बार इलेक्शन करवाएंगे क्योंकि माननीय सदस्य, रीजन में प्रॉब्लम आएगी, तब का कॉस्ट कहाँ जाएगा? तब कॉस्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? माननीय सदस्य, जो लोकल फिर से कुछ रीजन बोलना चाहती में है। प्रॉब्लम्स होती है वो स्टेट प्रधानमंत्री फिर लीडर्स से कुछ बोलना चाहती है आपकी। तो शर्मिष्ठा जी, जो आपकी बात है, जो आपने प्रस्तुत की है सदन में, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। आप कह रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी, एजुकेशन के ऊपर कैसे अलॉटमेंट होगा, चीजों का मीन्स पालन कैसे होगा, है ना? तो मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप जो इस बार बार जो इलेक्शन करवाएंगे, मतलब ये जो स्टेट में सबके सब इलेक्शन होंगे, क्या उसमें पैसे खर्च नहीं हो रहे? क्या उसके लिए हमें कोई सेपरेट फंड मिल रहे हैं? या फिर एक हमारे बहुत ही माननीय नेताजी ने बोला था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, तो या तो वो सोना आ गया कि उससे हमारे फंड चलेंगे। जी वो नहीं, मतलब प्रधानमंत्री जी, वो शायद आपको पता नहीं है कि शायद वो आप ही ने कहा था, शायद वो आप ही ने नहीं कहा नहीं था। नहीं, आपके जी ही जी बिल्कुल आपके ही बिल्कुल, नेता ने जी बोला जी है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके ही हम नेता ने आजकल बोला है, एडिट पे माननीय भरोसा नहीं महोदय। करते हैं ना, और मैं आपको मुद्दा बता क्या हम है? रही आजकल हूँ, आप लोग आप एडिट पे बोल चर्चा भरोसा रहे हैं नहीं कि नहीं कर करते रहे हैं हैं ना। एजुकेशन के ऊपर माननीय कैसे एआई का अलॉटमेंट जमाना जो होगी? आ गया है, आप नहीं एआई नहीं का नहीं, जमाना जो आ आप गया है, एजुकेशन हम आजकल अलॉटमेंट के एडिट पे बारे में बोल भरोसा रहे नहीं हैं, करते उसके हैं ना। बाद में आप बोल रहे हैं कि कॉस्ट की ही दोबारा बात कर इलेक्शन रहे हैं हम, होंगे, तो मुद्दे कॉस्ट आप से की ही बार मुद्दे बार बात हटने कर रहे इलेक्शन हैं दीजिए। करवा के हम आप कॉस्ट की कौन सा ही पैसा बात कर बचा रहे रहे हैं हैं? कि जब माननीय आप सदस्य, ये बता मुद्दे रहे से हो मत आप भटकिए। अब जब आपको आएगा तो फिर से स्टेट दोबारा लीडर्स इलेक्शन कैन करवाना मुद्दा क्या पड़ेगा, है? आप तब बोल ही क्या रहे होगी हैं आप आपकी लोग? सुन बचत रहा और है, आप आपकी मुझे माननीय डिप्लोमेसी। बताइए, सदस्य, तब आप मेंटेन आप द बार बार बताएंगे, डेकोरम ऑफ तब द इलेक्शन आप करवा के हाउस। बताएंगे बोल कि रहे हैं कैसे कैसे मेंटेन द नहीं नहीं खर्चा हो डेकोरम, रहा है खर्चाएंगे। आपका मेंटेन पैसा। द मुझे तो डेकोरम, पता ही मेंटेन। नहीं था, मुझे आई लग रहा है कि मुझे रिक्वेस्ट ऑल द इकोनॉमिक्स आपसे ऑनरेबल सीखनी members to पड़ेगी। kindly क्योंकि आपको maintain the एडिट और decorum. एआई के बारे में आपको लगा था ना, आप पहले Honorable members, कॉन्फ्रेंस maintain the decorum of the house. Maintain the decorum of the house, honorable members. बैठ जाइए, शांति से चर्चा करिए। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऑनरेबल मेंबर्स, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। द हाउस इज नाउ इन सेशन। माननीय सदस्य सौमेन मंडल, आप अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत करें। माननीय सदस्य सौमेन मंडल। Honorable Speaker, sir, according to the Elections Commissions, on average, one major states or national elections occurs every 5 to 6 months. It means the model code of conduct comes again and again and slowing slowing the development projects. It says also that whenever the model conduct comes, we know that whenever the one nation one elections not happened, that times we also see that huge expenditure from the public funds. If we see that 2019 Lok Sabha elections cost over 60,000 crore, the highest in Indian history. I repeat, the 2019 Lok Sabha elections cost over 60,000 crore, the highest in Indian history. And also we see that frequent state elections at thousands of crores more. And also the security development for elections takes away forces from the internal security challenges and border duties. Honorable members, should governance stops because an elections is happening elsewhere every few months? Should we projects wait? Should files wait? Should progress wait? India cannot afford development as a paralysis. The vision of one nation or one elections means means that all Lok Sabha and state assembly elections held together and one collective mandate also and one national mood.
And we also know that it is a one uninterrupted cycle of governance for 5 years. This is not just a administrative efficiency; it is a democratic empowerment. It's whenever the one nations one elections will be happen, it means that it's the benefits of the people. What's the peoples are the taking the benefit through the one nations of one elections bills. The development works will run uninterrupted for every for 5 years, and taxpayers money will be saved on a massive scale also. And also through the one nation one elections, policemen and teachers will not be pulled repeatedly for election duty. And we also know that the policy reforms will be implemented faster, and political stability will strengthen Indian globally. In a time when India aims to become a 5 trillion economy, we cannot afford distractions. We need continuous governance. Honorable Speaker said, this reform is not just today's government or tomorrow's government. It is the next hundreds years of India. One nation's one elections is not just a policy proposal. Honorable member, I guess Honorable Member K. Mahijit has a point of order. It's a national transformation and democratic upgrade, and a promise to every Indian that governance will not stop, development will pause, and aspiration will not wait. Thank you, sir. Okay. या धन्यवाद. सो सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं. माननीय सदस्य सत्यांश पाठक अपनी बात सदन के सामने प्रस्तुत करें. माननीय सभापति महोदय, सदन के मेरे सम्मानित साथियों, एक राष्ट्र एक चुनाव केवल चुनाव सुधार नहीं है, यह सुशासन को मजबूत करने, देश के बहुमूल्य संसाधनों को बचाने और भारत के विकास पथ को बाधित होने से रोकने का एक अनिवार्य कदम है. मैं यहाँ मजबूत तथ्यों और अकाट्य तर्कों के साथ इस एजेंडे के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ. मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण प्रमुख नीतिगत निर्णय रुक जाते हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो पाती और शिक्षकों, पुलिस वालों और अधिकारियों का ध्यान उनके मूल्य कार्यों से हट जाता है. वन नेशन वन इलेक्शन यह हमें 5 साल का एक निर्बाध कार्यकाल देगा, जहां सरकारें सेवा और विकास पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर पाएंगी. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (CMS) के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों का कुल व्यय लगभग 1 लाख करोड़ से 1,35,000 करोड़ तक होने का अनुमान है. तुलना यह आंकड़ा 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में खर्च हुए $12 बिलियन यानी कि 1,20,000 करोड़ से भी अधिक हो सकता है. जब हर दूसरे साल राज्यों के चुनाव होते हैं तो यह वित्तीय चक्र बार बार दोहराया जाता है. वन नेशन वन इलेक्शन इस भारी खर्च को रोकेगा और इस बजट को सीधे गरीब कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा. हमारे 1952 से 1966 तक इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया था. एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है जो स्थिरता, मितव्ययिता और तीव्र विकास की गारंटी देता है. जीडीपी में वृद्धि लगातार चुनाव आर्थिक गतिविधियों को धीमा करते हैं, जिससे देश की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है. विभिन्न अध्ययनों के अनुसार बार बार चुनावों के कारण होने वाली आर्थिक अस्थिरता को समाप्त करने से भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% तक संभव हो सकती है. यह आंकड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ के बराबर है, जिसे हम हर साल खो रहे हैं. वन नेशन वन इलेक्शन आर्थिक स्थिरता का संकेत देगा, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पूंजीगत व्यय और निवेश गतिविधियों में भारी उछाल आएगा. यह भारत को विश्व में एक अधिक विश्वसनीय निवेश गंतव्य बनाएगा. लगातार क्षेत्रीय चुनावों में राष्ट्रीय नेतृत्व का ध्यान बार बार स्थानीय मुद्दों पर भटकता है. वन नेशन वन इलेक्शन से केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और बड़े आर्थिक सुधारों पर बिना किसी रुकावट के ध्यान केंद्रित कर सकेगी. महोदय, वन नेशन वन इलेक्शन कोई तानाशाही कदम नहीं है. यह एक देश, एक संविधान और एक कैलेंडर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है.
यह 4.5 लाख करोड़ की संभावित जीडीपी की वृद्धि है। यह प्रशासनिक दक्षता है। यह निरंतर विकास की गारंटी है। Member, you have हम a विपक्ष से अनुरोध करते हैं। point of order is raised against you. There are 2 point of orders. I may take up both of them. So first we will move, yeah, Honorable Deputy Leader of Opposition, Sir Mr. Datta. Then we'll proceed ahead. Yes. मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगी। सबसे पहले आपने कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आपकी पार्टी ध्यान केंद्रित कर पाएगी देश में। इसका मतलब आपकी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, इसलिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है अभी। दूसरा सवाल, आपने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वन इलेक्शन नहीं है, इसलिए स्थानीय मुद्दे पर ध्यान बार बार भटकता है। तो इसका मतलब कि स्थानीय मुद्दे पर ध्यान बार बार भटकना नहीं चाहिए। और दूसरा आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन से क्योंकि पूरे देश का मुद्दा आएगा तो गरीब कल्याण होगा। इसका मतलब अभी आप गरीब कल्याण नहीं कर पा रहे, और वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तभी आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे पूरे देश में। और स्थानीय मुद्दे पर ध्यान भटकता है, इसलिए स्थानीय मुद्दे पर ध्यान भटकना जरूरी नहीं है। क्या यही आप कहना चाहते हैं? नहीं मैडम, हम ऐसा कहना तो नहीं चाह रही, लेकिन आप अगर ऐसा समझना चाह रही हैं तो यह आपकी मजबूरी है, क्योंकि हमारा ध्यान समझने नहीं आ हर रही हूँ ना, आप जो कह रहे हैं मैं वही समझ रही आप हूँ। मौका दीजिए कि अगर हम मुझे अपनी खुद बात से ही पूरी करें। समझना होता तो अगर मैं यहाँ आपको बैठी चिल्ला नहीं के रहती। बात आप करनी जो तो आप समझा कर रहे हैं मैं सकती वही हैं। सुन के समझने की विपक्ष का कोशिश कर काम रही ही हूँ। है विपक्ष का काम ही है मुद्दे से भटकने का। महोदय, आप सुनिए हमारी बात। आपका मुद्दा तो नहीं है, आप लोग का मुद्दा तो नहीं है, क्या मुद्दा हमें बोलेंगे? आप बात तो रखने रखने दीजिए। के लिए भटकू कहा? आपने खुद कहा कि स्थानीय मुद्दे से भटकते हैं आप। Honorable member. स्थानीय जी मुद्दे जी पर जी से हम भटकते हैं भटकते आप। नहीं है, हम भटकते नहीं है, आपकी हमें खुद की भटकाया जाता जुबानी है। है, आपकी खुद की कोई जुबानी है, भी कह दो कि सरकार, आपने कोई नहीं भी कहा। सरकार, आप सिर्फ कह दो आपने नहीं कोई कहा, भी आपकी खुद की सरकार जुबानी है। Honorable यहाँ पे members, कहा जा maintain रहा है the कि decorum हम of एक the जगह house. पे कंसंट्रेशन सही से कर पाए। आप चीजों को घुमा क्यों अरे रही तो हैं? इसका मतलब आप अभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। नहीं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे कंसंट्रेट हैं, तो आप भी नहीं लेकिन कर पा आपको रही नहीं हो। आपने लगता। खुद कहा आप बार स्थानीय बार मुद्दे से Honorable आपका लेकिन members, ध्यान हम उसको maintain भटकता the है। मैडम बेहतरीन हम decorum of the बनाना चाह कंसंट्रेशन house. रहे में हैं। है। हम उसको मैडम हमका बेहतरीन बनाना चाह रहे काला हैं। धन आ रहा है, बोल गुजरात तो होके आप दिल्ली वैसे होके अगर कराची जैसा होके काला आ रहा धन है तो मैडम। आपकी जेब में आप जा बोल तो रहा है, ऐसे रही हमारी है जेब जैसे में कि नहीं समझना तो जाता। आप भी नहीं माननीय चाहते। आप बता रहे हैं, माननीय जैसे सदस्य रही नहीं गण, बैठे हैं। हम वेट कर रहे हैं सदस्य काला गण, धन आने का। आप पहले ये रहेंगे। कह दो कि आपने ये बात कही नहीं कि आपके स्थानीय मुद्दे से ध्यान भटकता है। आप maintain पहले बस एक बार कह नहीं, दे कि आपने मेरी ये बात maintain नहीं the कहा कि decorum सुनाइए of स्थानीय the तो house. मुद्दे से मुझे ध्यान भटकता मुझे यहाँ है। पे बोलने का बोला आप जा मौका रहा है तो कि Maintain the हम दीजिए। decorum of the मुद्दे पे house, ढंग से honorable member. कंसंट्रेट कर पाए, Member, क्योंकि ये देश का आप मुझे मुद्दा बोलने का मौका यहाँ maintain, पे maintain the ये decorum नहीं of the कहा house, कि कहा कि honorable स्थानीय जो members. हम मुद्दे से एग्जाम ध्यान लेने तक भटकता पूरा Honorable, नहीं है। कर पाए। आपकी honorable जुबानी है, आपकी deputy, जुबानी है, आप deputy सिर्फ कह leader दो of बहुत आपने नहीं opposition, कहा। मेहनत चाहिए होती है, honorable deputy बहुत leader of मेहनत चाहिए opposition, होती है। बैठ जाइए जी। आप लोग प्लीज, क्या honorable हमको members, मौका प्लीज मिलेगा एक बार बोलने का? जी, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। आप ऑनरेबल मेंबर सत्यांश पाठक, प्लीज आंसर रिप्लाई इन 30 सेकेंड्स। जी, बस मैं 30 सेकंड में इस चीज को कंप्लीट करना चाहूंगा सर, कि हमारा मेन है कि हमें विकास लाना है और हमें चीजों को, हमारा जो सिस्टम है हमें उसे बेहतरीन बनाना है। और उसके लिए जब ये हम इस मेरे चीज को प्रश्न का अप्लाई करेंगे सवाल तो है ही हमारे नहीं जो सर। मेन मुद्दे ये हैं मेरे हमें प्रश्नों आप का कंप्लीट सवाल है करने ही नहीं। दीजिए। नहीं तो हम आपके मुद्दे से सवाल आप का भटक ही रहे जवाब दे रहे मैम हैं। प्रश्न का उत्तर होता जी, है हमें सवाल। हम जैसे आप देश के हर एक किस्से को भटका देती हैं, ऐसे आप हमें नहीं भटका सकती। हमें अपने पॉइंट को रखने दीजिए मैम। हमारा बस ये है कि हम अपने ऑनरेबल सिस्टम को मेंबर बेहतरीन बनाना पुष्पा, चाहते पॉइंट हैं। ऑफ हर एक ऑर्डर। सिस्टम में एक खोट होती है। सर, इन्होंने पैसे बचाने की बात करी तो यही लोग वो लोग हैं जो फ्रीबीज को प्रमोट करते हैं, और साथ साथ जो आपने कॉर्पोरेट का 12 लाख करोड़ का जो आपने लोन माफ किया है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद पैसे बचाने की बात करेंगे। और उसके बाद टैक्स रिबेट के बाद भी जब जब टैक्स रिबेट के बाद भी जब कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप फिर से अपनी बात को रखना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगी कि आप ही की सरकार वो सरकार है जो फ्रीबीज को प्रमोट कर रही है, और 12 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट का लोन आप लोगों ने माफ कर दिया है, और उसके बाद इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा, टैक्स रिबेट के बाद भी कॉर्पोरेट जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में रेडी नहीं है, तो तब हमारा नुकसान नहीं हो रहा है।
नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अभी इसी बीच जो स्कीमें निकाली उससे हमें तो नहीं लगता कि कोई नुकसान हुआ है अभी तक तो। ओके, देन यू हैव और टू बाकी फैक्ट एंड डेटा। जी, आपको आपकी खुद के डेटा और फैक्ट को चेक करने की फिर से जरूरत है। ऑनरेबल जी मेंबर हम चेक लास्ट करेंगे, आपने कहा है तो हम बिल्कुल चेक करेंगे, मैडम आप बात कर रही लेकिन हैं, आप मुद्दे मैडम को विपक्षी बताइए ना नेत्री हमें। आपसे बोलना चाहूंगा, आप बात कर रही हैं फ्री बेज की। अगर आपको पता ना हो तो पहला फ्री बेज कांग्रेस सरकार द्वारा ही लाया गया था, और वो मिड डे मील था, कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज जी ने ही लाया था, आपकी सरकार ने ही शुरुआत किया था इस चीज को। हाँ, मिड डे और मील आज को आप जब हम लोग कर फ्री रहे बीज बोल रहे हो, आप मिड डे मिड मील डे को आप फ्री मील बीज को बोल रहे हो। फ्रीबीज कह भाई रहे आप हैं, लोग कहाँ ये आप कैसे क्या कह लेवल सकते का हैं? पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्या मिड डे लेवल का मील से बेसिक माननीय पॉलिटिक्स। कितने लोग सदस्य मुद्दा क्या है? मुद्दे से मत भटकिए फ्री माननीय बीज बोल सदस्य रहे हो मिड डे बैठिए। मील को। विपक्ष का काम महज ये है कि मिड डे जब मील कोई को सवाल फ्रीबीज का बोला गया, जवाब ना हो इसका तो पुरानी पुरजोर विरोध सरकार होता ने क्या है। किया, वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, आप लोगों को आरोप लगाने के और अलावा जब कुछ आपके नहीं पास आता। जवाब नहीं होता तो आप यही कहते लगते हैं कि विपक्ष मुद्दे से मुकर रही है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है ना, यही माननीय लाइन बोल सदस्य के बस आंसर देने की प्लीज कोशिश बैठ, करते हैं। आप लोग आपका बैठ मेन जाइए। प्रश्न था ना कि मुद्दा एक भटक का भी जाता है, आंसर सरकार दे काम पाए क्यों आप, नहीं करती। एक का भी जवाब दे पाए, एक सबका का जवाब आंसर जवाब दे दे पाए, दीजिए आप मान लो। खुद हमने नहीं पाए, सबने चाहिए, आप जवाब बैठ एक का दिया सबका है। जवाब दे आंसर दे दीजिए पाए, मान आप लो। सबको, खुद नहीं पाए। पे सबको बोलेंगे बोलने का सभी, मौका मिलेगा। बताता हूँ। यानी सबको, सबने जब देश सबको के बोलने अलग का अलग मौका राज्यों मिलेगा। में आप बैठ विपक्षी जाइए द्वारा प्लीज, अलग अलग प्लीज, बेतुके सवाल, बेतुके प्लीज, मुद्दे को उठाया जाता है, जाति धर्म प्लीज के मेंटेन। मुद्दे पे अरे आप भड़का दिया मुद्दे जाता है, छोड़िए प्लीज ना, इसलिए मेंटेन मेरे द सुधार पहले नहीं कर सवाल प्रेस्टीजियस पाते का हैं। जवाब हाउस। दीजिए। बेतुके यूजलेस मुद्दे छोड़िए, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए ऑनरेबल ना। मेंबर ये प्लीज, लाइन आप बोलना छोड़िए सदन और में हैं, सवाल का सदन जवाब की दीजिए। मर्यादा का पालन आपने करें। बोला ना कि देश के अलग अलग हिस्सों में सुदृढ़ तरीके से हमारी सरकार काम नहीं कर पा रही है, वो इसलिए नहीं हो पाता कि जब एक राज्य में किसी बेतुके सवाल को, बेतुके मुद्दा उठा दिया जाए, किसी जाति प्लीज, को लेके आप आवाज संसद दे में दिया गया हैं, कि आप आप अपनी निचली शब्दों जाति का को चयन करते वक्त हेल्प करते हैं, ध्यान इस रखिए तरीके प्लीज। के मुद्दे से आप राजनीति करेंगे। नहीं नहीं, डबल इंजन का सरकार तो एकदम टूट फूट के माननीय ट्रेन आउट हो सदस्य गया, नो, यू हैव रेलगाड़ी नॉट, से, रेल का पट्टी से उतर प्लीज के डोंट नीचे आ गया। डिस्टर्ब द, इसीलिए बिहार चुनाव में आपकी ये हालत हुई कि मात्र प्लीज 25 डोंट सीट में डिस्टर्ब द एक बिहार प्रोसीडिंग्स की ऑफ, सबसे बड़ी पार्टी नो सिमट के ऑनरेबल रह गई, मेंबर्स, आप लोग प्लीज बहुमत डोंट तक नहीं ला। डिस्टर्ब, अगर नो, हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते प्लीज ना, बहुमत डोंट ऐसा तक नहीं हम ला डिस्टर्ब द पाए थे ना आप। हम तो प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। लिख बना देते आप लोग की ऑनरेबल तरह। मेंबर्स जब प्लीज अच्छा नहीं मेंटेन, लगता तो कॉन्स्टिट्यूशन I में अमेंडमेंट request कर each and देते, every नया नया रूल honorable बना member देते। kindly do not disturb the अगर proceedings हमारा of भी the ऐसा house। होता ना, हम भी बना देते। जी, माननीय सदस्य हमारा और बैठ आपका जाइए, इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन क्या बैठ, भाजपा सबको कराती है मौका क्या, मिलेगा, आप कि बैठ जाइए। सत्ता तो पक्षी इलेक्शन पार्टी भाजपा नहीं कराता इलेक्शन है, कौन बैठ, कराती है कराता क्या? है? ऑनरेबल, आप इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन आप इलेक्शन किसके? कमीशन पे ऑनरेबल आवाज मेंबर, उठा सदन रहे हैं ऐसे ना। नहीं चलेगा, आप बैठ जाइए। हाँ, उठा रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज बैठ, बैठ जाइए, शांति, हम चर्चा करनी है तो मुद्दे पे करिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पे रहिए और चर्चा मुद्दे करिए। से विपक्ष भटकता है साहब। मान सबसे पहली बात, माननीय सदस्य, आप अध्यक्ष को साहब नहीं बोल सकते। प्लीज आप अपनी जो शब्दों का चयन है उसके ऊपर ध्यान रखें और हमारी लोकसभा के नियम क्षमा शैली का क्षमा पालन प्रार्थी हूँ करें। सर। जी, जी धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सदन की क्षमा कार्रवाई प्रार्थी को हूँ उसके लिए। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए माननीय सदस्य शिव ज्योतिनाथ, आप अपनी बात सदन के सामने। Thank you, Speaker sir, for once again giving me this golden वन opportunity to speak on मिनट, this beautiful topic. 1 मिनट जी माननीय Thank you, सदस्य। Speaker sir, for giving me this opportunity to speak on this beautiful topic, one nation one election. मैं विपक्ष के सदस्य होने के नाते मैं मेरा प्रस्ताव रखूंगा, और उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। आप लोग का स्लोगन था, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, बैकफायर हो गया। सॉरी बैकफायर हो गया। प्रभु राम आए तो न्याय आया, टाइम लगा, बट इंसाफ तो हमको मिला ना। आई विश देम ऑल, I understand the logic of saying why we did one nation, one election, to have every after 6 months here and there. The argument, all the things I have heard so far, is logic. Everything we understood, but the counter, your diagnosis can be right, but your prescription is very wrong.
Speaker sir, we have no problem with one nation one election, but the problem is with your election commission जो आप लोग ने बैठा के रखा है ना, उन लोग का प्रॉब्लम है, ना कि माननीय उन लोग को सदस्य बोलिए ना मुद्दे बात से करने मत के लिए। भटकिए, आप मुद्दे से They मत said भटकिए। वन नेशन वन they इलेक्शन said along with करिए। त्रिपुरा एंड असम का इलेक्शन के साथ वो महाराष्ट्र का इलेक्शन एंड झारखंड का इलेक्शन नहीं करा पाएंगे। Speaker sir, they have mentioned 3 challenges. As per the SR Bommai judgment, it goes against the federal structure of the constitution. The problem is earlier the committee has produced the expense, the security procedure, and the mobility of manpower to conduct election in simultaneous state. और थर्ड पार्टी का बारे में हम if I say, Speaker sir, the government up which is running the state, if they are time to lose the election, they stop conducting election in the particular state. They want extension. Speaker sir, the present ruling government minister Jyotiraditya Scindia, who pulled the Maharashtra government, there is a leader Chirag Paswan, who the BJP tried to destroy his party. There is a sitting cabinet minister of JDU who swept both the party of RJD and BJP. माननीय सदस्य, Then you आप have ऐसे नाम cabinet नहीं, minister अगर आपके पास तथ्य नहीं Mindhe. है तो आप प्लीज ऐसे आप नाम Then नहीं you ले have Mindhe Sinha who betrayed the party. Thank you भारतीय जनता पार्टी। आप लोग ने तो आप लोग ने सिखाया चोरी करना किसको बोलते हैं, डकैती करना किसको बोलते हैं। छोटे से हम माननीय बोलते थे सदस्य, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप संसद के नियमों का पालन करें, अपनी तो भाषा शैली ठीक है पे माननीय स्पीकर सर, संसद का नियम हम पालन करेंगे अभी से। ठीक तो है। अभी when we एक go against the मिनट, idea of प्रधानमंत्री democracy and फिर से कुछ constitution, बोलना चाहती है। एक मिनट, प्रधानमंत्री फिर से कुछ बोलना चाहती है। जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुभ ज्योति जी, आपकी तो बात का क्या ही मैं बखान करूं। यहाँ पर आप राम के चरित्र की बात करें, यहाँ पर आप राम जी माननीय का नाम लेके सदस्य, उन्हें नो, प्रेरणा दे रहे हो, नहीं, एक तरफ आपने इसको आप लोग कल्पना मुद्दे, बता दिया था। एक मिनट, आप लोग मुद्दे पे रहेंगे, मुद्दे से कोई हटके नहीं बोलेगा, मुद्दे पे रहिए। तो प्रधानमंत्री जी, आप भी मुद्दे पे ही रहिए। जहां तक की बात इलेक्शन की है सर, जहां तक की बात इलेक्शन की है, ये वन नेशन वन इलेक्शन हमने प्रस्ताव रखा ही इसलिए है कि इसके अलॉटमेंट हो सही कामों पे, सही पॉलिसीज मैडम पे, जी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी, एजुकेशन हो। 10 साल में ऐसा सरकार आप लोग ने चलाया है जो बोलना तो पड़ता है आपने वन 70 नेशन साल वन में कौन इलेक्शन। सी सरकार चला दी? इमरजेंसी के अलावा आपने वन कौन नेशन सा वन इलेक्शन कार्य आपका किया है बात जो होना हम चाहिए। हम ये ना इतिहास वन में देख नेशन वन सकते हैं? एजुकेशन के बारे में बात कीजिए बताइए। ना, वन नेशन वन अरे एजुकेशन के बारे बताइए में ना, बात कीजिए। आप 10 साल की बात करें Speak तो about 70 one साल का nation हिसाब one education, दीजिए। we'll support. यहाँ We'll पर support one nation one education, one nation one health. आम आदमी को क्या फायदा होगा? आप 10 पॉइंट इलेक्शन ऑफ कर ऑर्डर रहे हैं, रिकॉग्नाइज वन नेशन वन एजुकेशन के ऑनरेबल बारे में लीडर बात ऑफ आप कीजिए। 10 इलेक्शन करवाने के लोकसभा। रिपोर्ट में आप हमें बोल रहे हैं कि 10 इलेक्शन करवा रहे हैं। अरे आप पहले ये तो देखिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 10 इलेक्शन की तो बात हम कर ही नहीं रहे। 10 ये तो बोल रहे हैं ना, मुद्दा आप आके जनता के हित में लाइए ना, गरीब को क्या फायदा होगा तो जनता के वन हित नेशन में वन है, इलेक्शन, जनता को पॉलिसीज वन नेशन वन मिलेंगी। इलेक्शन, जो वन नेशन वन जो आप इलेक्शन प्रचार वन में एजुकेशन पैसा लगाते ऑनरेबल हैं, जो मेंबर्स, आप मेंटेन द डेकोरम जो ऑफ द आप हाउस। प्रचार में पैसा लगाते सब प्लीज कुछ मेंटेन। लगता है, वो पॉलिसीज में आगे लगेगा। इसमें तो जनता इसलिए का तो हित है क्या? गरीब के बच्चे लोग को एक एजुकेशन और अंबानी अदानी बच्चे को एक एजुकेशन मिलता है ना, इसलिए भारत का मेंबर्स सरकार आप लोग प्लीज, ने चलाया अगेन है। मैं अपने शब्दों देखिए का चयन महोदय, ठीक से देखिए संसद कैसे में। बातों को भटकाया जा रहा है। मैं बातों को भटका नहीं जा रहा हूँ, मेरे बात को कंप्लीट करने नहीं दिए, आप लोग ने बीच में टोक देते हो, कैसे बात पर रखूंगा मैं? सर आपकी बात मुद्दे से ही भटक रही है तो सबको ही टोकेगा। बिना मुद्दे की तो बात ही कर रहे हैं कैन तब आई से, रेज सुना पॉइंट ही ऑफ नहीं जा ऑर्डर? रहा। कैन आई एक रेज पॉइंट मिनट, ऑफ पॉइंट ऑर्डर? ऑफ ऑर्डर था, कहना है लीडर ऑफ कि अपोजिशन पूरा विपक्षी मुद्दा से भटका हुआ है लीडर दरअसल। ऑफ अपोजिशन speak लोकसभा। about topics. So माननीय speaker, प्रधानमंत्री, जो the model which they are trying to conduct, माननीय सदस्य, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुन लीजिए, बाद में आप बोल लीजिएगा, बैठ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेट के इलेक्शंस की बात करी कि वो साथ में करा के रिसोर्सेज बचाना चाहती हैं। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय जी, कि जो लोकसभा के बाद जो राज्यों में चुनाव हुए, एक चुनाव हरियाणा में हुआ, दूसरा महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में, तीसरा फरवरी में दिल्ली में होता है, फिर 5वां भी होता है
अक्टूबर में। तो ये कैसा वन नेशन वन इलेक्शन है? अगर हमें ट्रायल करना था तो हम कर सकते थे, इन सारे राज्यों का चुनाव एक साथ करा के देखा जा सकता था। और माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रही हैं कि 70 सालों से इस देश में क्या हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदया जी को ये बताना चाहता हूं कि जब वो सत्ता में आई 2014, तो वो याद रखें कि उन्हें $2 ट्रिलियन की इकॉनमी मिली थी। वो जब जब ये बात कहती हैं, वो तब इस देश को बनाने वाले और इस देश को सरोवने वाले लोगों के सैक्रिफाइसेस पे परसेंटेज लगाती हैं। वो उनके द्वारा किए गए एक एक काम पे सवाल पैदा करती हैं। मैं ये बात कहता हूं कि सत्ताधारी पार्टी ने भले ही अच्छे काम करे हैं, उसका कोई विरोध नहीं है, पर 70 सालों में भी बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। भारत की जो आज राष्ट्र प्रभुता है वो कहीं ना कहीं 70 सालों में कामों की है। चाहे IIT हो, IIM हो, हॉस्पिटल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो 70 सालों में हुए हैं। इस बात को कहना बंद कर दें। आप अपना राजनीतिक फायदा लें, पर देश को मत नीचा दिखाएं। देश के लोगों ने, जिन्होंने माननीय देश को सदस्य, बनाने में अपना सब माननीय कुछ लगाया। सदस्य बैठ जाइए जी, बैठ धन्यवाद। जाइए। LPG प्रधानमंत्री जी, आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे अभी बोलने के लिए, तो आप अपनी 10 सेकंड में बात जवाब दीजिए, क्योंकि आपका नाम लिया गया। सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, बात ये है कि एक तरफ तो मुझे समझ में नहीं आता ये बोलते क्या है सर महोदय। सारी बातों को, सारे टॉपिक को मतलब जड़ से इतना ज्यादा घुमा दिया जाता है कि डिस्कशन का टॉपिक कोई एक होता है, ले जा कहीं और ले जाते हैं। एक तरफ कोई बोलता है 10 साल में काम हो रहे हैं, खुद एक्सेप्ट करे, एक साइड में कोई ना कोई बोल रहा है कि 10 सालों में काम नहीं हुआ। अब सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डिस्कशन क्या चल रहा है संसद में ढंग से। प्रॉब्लम अब जब बात आती है प्रॉब्लम भाई आपको हो जवाब रहा है मैडम देगी, जी, जब किसी को सर प्रॉब्लम एक नहीं हो मिनट मेरे रहा, को प्रॉब्लम बोलने आपको हो दीजिए, रहा है। मेरे को 10 सेकंड ही मिले हैं। अगर मैं जवाब आती, जब जवाबदेही का हमारा समय आता है तो हमें जवाब क्यों नहीं मतलब देने क्यों नहीं दिया जाता? हम कुछ ओके, बोलते हैं उसे एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है। सर समय दिस इज नॉट फेयर। एडवर्टाइजमेंट समय सीमा कर रहे हैं। समय सीमा का ध्यान रखा जाए। माननीय सदस्य रिया गुप्ता, अपनी बात सदन के सामने रखें। मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ सर। अरे स्पीकर आपने, सर, माननीय सदस्य, आपने बहुत, आपको एक्स्ट्रा समय मिला सबसे। तो बात लास्ट में एक बात बोल के मैं खत्म कर देता हूँ स्पीकर सर। सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। हाँ 10 सेकेंड। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे आके अटक गई, और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई सर। क्या बोल रहे ये हैं आप? बार सदन बार में थैंक यू क्यों सर। बैठ हर जाइए, बैठ बात को जाइए। भटकते हैं? और रिया आप गुप्ता, आलू से माननीय सोना बनाते सदस्य, आप रहिए बोलिए। जनाब, आलू से सोना क्या ये बनाइए आप सदन लोग। की गरिमा को ठेस आलू पहुंचा को रहे सोना हैं? तो आप लोग ने बनाया है, आप लोग ने पार्टी के ये लीडर ने संसद बनाया है, है, यहाँ हम तो पर सोना ये नहीं। चर्चा नहीं होनी चाहिए। हो गया है, हम माननीय हकदार सदस्य, किसके आए हैं? यहाँ कोई पर मुद्दा परिंदे क्या है? मार नहीं बेचते, और मुद्दा हमें क्या? तो पूरा एक गर्व मिनट, है क्योंकि बैठ हम उस जाइए। जगह से आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप सबसे पहले आप बैठ जाइए। ठीक है, देखिए, मुद्दे पे रहिए और मुद्दे पे ही चर्चा करिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पे सबसे लंबी और अच्छी चर्चा का आप लोग कृपया करके सभी सदस्य मुद्दे से ना भटके। माननीय सदस्य रिया गुप्ता, अपनी बात सदन के सामने रखें। Honorable Speaker and honorable members, आप सभी को मेरा नमस्कार। Today, I rise to talk about the proposal called One Nation, One Election, which promise efficiency and stability, but what they're truly offering is the demoralization of accountability and the consolidation of power in the hands of the union government. Let us first address the most crucial element, the citizens' power to hold their government accountable. For evidence, look at the 2019 Lok Sabha election of Uttar Pradesh. The ruling party won by 62 seats. Yet just 5 years later, in 2024, the seats got reduced to 33. And this shift proves one simple fact. The citizens have used the ballot box to send a clear message to the government. But One Nation, One Election seeks to deny this critical, recurring opportunity for the citizen to express their dissatisfaction and demand performance. The second great tragedy is the sidelining of the state matters. When all elections are held together, the national narrative
of border security or the foreign policy will overshadow the vital local concern. And on the other hand, we see the introduction of system like right to recall for local bodies in state like Haryana. It highlights the dual nature of the government. Furthermore, let's talk about the practical impossibility as of now. The Election Commission, the Election Commission of India itself noted the immense logistical hurdles, that is nearly 30 to 40 lakh additional EVM machines, which is 3 times the current number. Also, the existing management struggles create the huge risks of illegal election and total chaos. Let us finally expose the biggest lie of this proposal, the lie about the cost. To put that perspective, the total cost of a full election cycle is less than the money lost in 1 year to benefit the corporations. I asked the government, how can you worry about the cost of voting when in just a few years ago, in September 2019, you willingly gave away over 1 lakh crore every single year by cutting taxes for big companies? If cost is the true concern, why are you targeting the mechanism of the popular will? This proposal is a power play disguised as reform. It reduces public awareness and offers stability without accountability. We, the opposition, stand firm, and we must protect our frequent elections because they are that mechanism by which the government remains truly accountable to the people of India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद. पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कीर्ति मेघानी. सर हमारी ऑपोजिशन तब से बोले जा रही है सारे, ये भी इन्होंने एक पॉइंट रेस किया है, साइडलाइनिंग द स्टेट मैटर्स. तो स्टेट मैटर्स कैसे साइडलाइन हो रहे हैं? क्या उनकी लोकल अथॉरिटीज कुछ नहीं कर रही हैं? हर स्टेट पे एक लोकल अथॉरिटीज होती हैं, कैंपेन्स होते हैं अलग अलग लेवल पे. तो आप ये नहीं जस्टिफाई कर सकती हैं कि स्टेट मैटर्स होंगे ही नहीं. आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि स्टेट तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब उसको कुछ होगा ही नहीं, यूनियन मैम ही आप सब देखिए, करेंगी. मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप 5 साल में एक बार इलेक्शंस कराएंगे? आपके पास दोनों इलेक्शंस कराने के लिए होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव्स की भी और लोकसभा की भी. तब आपके पास मेजर कैंपेन में जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? क्या आप वहां पे सड़क के पोर्ट होल्स के बारे में बात करेंगी, पानी इरिगेशन के बारे में बात करने लगेंगी, कि आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करने लगेंगी? शायद आप नेशनल सिक्योरिटी ये सब चीजों पे बात करेंगे. मैम आपकी जो रूलिंग पार्टी है ना, वो तो 3-4 मुद्दों पे ही बात करती है. मैं आपको बता रही हूँ, वो 3-4 मुद्दों पे बोलेगी, पाकिस्तान पे बोल देगी हम पाकिस्तान से आगे चल रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की जीडीपी कहाँ सेंट्रल है लेवल नहीं के पता मुद्दे होता. अलग होते हैं, जो आपने स्टेट लेवल को साइडलाइन करने की बात कही है, मैं वही तो वो कह रही हूँ, अलग है. साइडलाइन तभी तो होंगी ना, क्योंकि आप तो सारे इलेक्शन साथ में करा रहे हैं, तो आप तो स्टेट पे ध्यान ही नहीं देना चाहेंगे, आप तो लोकसभा पे जाएंगे ना. का कोई रिलेशन नहीं है. इलेक्शन जो होते हैं वो सीधा आपको वोट देना है, आपके लीडर सेलेक्ट हो गए. आप जब माननीय वोट देने सदस्य जाएंगे ना, कमेंटेड आपके जो समय सिटीजन सीमा का होंगे, पालन करें कृपया करके. मैम वही तो मैं आपको कह रही हूँ, जब सिटीजन जाएंगे माननीय वोट देने, सदस्य तो समय उनके पास सीमा क्या का इन्फॉर्मेशन कृपया है, करके उन्हें क्या पालन लगता करें. है? आप 3-4 साल समय सीमा का ध्यान रखें. सर माननीय मैंने तो इनके क्वेश्चन को आंसर बिल्कुल करा है कि साइडलाइन कैसे हो रही है हमारी जो भी स्टेट मैटर्स होंगे, क्योंकि तब जी. मेजर इशू और जो मेजर फोकस रहेगा वो लोकसभा के टॉपिक्स पर रहेगा, ना कि स्टेट मैटर्स पे जी. या फिर जो नॉर्मल पंचायतें म्युनिसिपैलिटीज की होगी. जी. जी, सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए माननीय सदस्य निमिष लमिया अपनी बात सदन के सामने. माननीय सदस्य यशिका अपनी बात सदन के सामने रखें. Yes, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, देवी और सज्जनों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. एक राष्ट्र एक चुनाव, यह अवधारणा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के साथ करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य है भारत में 1951 से 1967 तक लोकसभा और अधिकांश राज्यों की विधानसभा में चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में यह चक्र टूट गया. वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया. यह प्रणाली
के कई फायदे हैं। बार बार चुनाव करने से भारी मात्रा में धन खर्च होता है, जिसका एक साथ चुनाव होने में काफी बात होगी। साथ ही यह हर साल अलग अलग समय पर चुनाव होने का कारण लागू वाले आदर्श आचार संहिता के विकास कार्य बाधित होते हैं, जिसके एक साथ चुनाव होने पर शासन और विकास कार्यों में निरंतर आएगी। इसके अतिरिक्त यह सरकार के पूर्ण 5 साल की अवधि के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाने और लागू करने का मौका देगा, बजाय इसके कि वे लगातार चुनावी मोड़ रहे हैं। हालांकि इस विचार के साथ कई नुकसान और चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इस प्रणाली को लागू करने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो एक जटिल प्रक्रिया है। आलोचकों का तर्क है कि भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। क्षेत्रीय दलों को डर है कि ये एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दे पर हावी हो सकते हैं। हर 5 साल में एक बार चुनाव होने से जनता के प्रति सरकारों को दावेदारी कम हो सकती है, क्योंकि लगातार चुनावी दबावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। निष्कर्ष ये है, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार देने संशोधनों को बेहतरीन उपाय और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि इसे लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक बदलावों और राजनीतिक आम सहमति की आवश्यकता है, ताकि भारत जीवन लोकतंत्र और संघीय सिद्धांतों का कोई नुकसान ना हो। मैं एक एज अ इंडिपेंडेंट मेंबर मेरी ये सारे पॉइंट्स थे। जी, धन्यवाद। Functions. Speaker Sir, today our country is almost always in election mode. Every few months, elections in one state or the other lead to repeated enforcement of model code of conduct. As a result, development work slow down, important decisions are delayed, and the full energy of our administration is diverted from governance to election management. One nation, one election will bring stability, efficiency, and continuity in governance. It will save enormous public money spent repeatedly on elections, on security, logistics, and administrative machinery. These precious resources can instead be used for education, healthcare, infrastructure, and welfare of our citizens. Speaker Sir, simultaneous elections will also reduce the burden on voters. Frequent elections cause voter fatigue and lower participation. When people vote once together for the nation and the state, it strengthens democratic participation and awareness. This reform will further give policymakers a long-term vision. Governments will be able to focus on 5 years of development rather than short-term promises driven by constant electoral pressure. Sir, one nation, one election does not weaken democracy. Rather, it strengthens federalism by ensuring stable governments at all levels and smoother coordination between center and state. I urge this house to rise above political differences and support this progressive step in the larger national interest. Thank you. Jai Hind. Point of order recognized. Honorable Member Chaitanya Sir. सर, अभी कीर्ति मेघानी जी ने फेडरलिज्म के बारे में बात किया, बड़े बड़े शब्द सुनने के लिए, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन किया फेडरलिज्म, दैट्स ओके, बट अकॉर्डिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म इज अ वेरी गुड थिंग। बट जब आप लोग ने स्टेट्स का इश्यूज इग्नोर करने तो देन इट विल बी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी You can't show the माननीय सदस्य, प्लीज don't show such this thing. डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, डेथ ऑफ बोला जाता है क्योंकि इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैम बेसिक हमारा जो है क्वासी फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो स्टेट, सबसे पहले भारत एक यूनिट है, उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर हमने इस वजह से बनाया ताकि अच्छे से गवर्न हो सके। वो गवर्न हो सकता है अगर दोनों साथ में चले तो।
स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात किया। आप लोग ही खुद नीति आयोग ने क्या बोलते एस्टेब्लिश किया 2015 में, क्योंकि इट वर्क्स ऑन द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। जब आपने वन इलेक्शन वन वोट की बात आते थे, ये वाला स्टेट्स का इश्यूज ही भूल जाते हैं आप लोग। छोटे स्टेट छोटे के इशू इश्यूज के हम ऊपर बिल्कुल नहीं भूले हैं। स्टेट के इश्यूज के लिए स्टेट लोकल गवर्नमेंट है, उसके लिए हम नहीं इश्यूज बोले हैं। अगर दोनों साथ में होंगे तो हम लोग वोट से इग्नोर करते हैं, देन दैट इज ऑल्सो डेथ ऑफ फेडरलिज्म बोलते हैं। हम किसको इग्नोर करते हैं? सॉरी, दूसरी चीज आपने इतना इम्पोज करते हैं ना, लैंग्वेज भी इम्पोज कर रहे, अभी तो इलेक्शन भी इम्पोज कर रहे हमारे ऊपर। हमारे लैंग्वेज का मुद्दा ही डिफरेंट है। आप क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं? ये मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, और हम लोग ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लैंग्वेज भी इम्पोज किया, और अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन भी कर रहे हैं। और कुछ कुछ लैंग्वेज हम लोग कुछ इम्पोज नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी लैंग्वेज माननीय सदस्य, मैं सभी सदस्यों को, जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, बोलने का मौका मांग रहे हैं, मैं सभी सदस्यों को 20 सेकंड्स का समय दूंगा अपनी बात रखने के लिए, जो लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए अपनी बात रखना चाहते हैं। माननीय सदस्य अमन मिश्रा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि विपक्ष के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो हम मेनली केंद्र सरकार, जो केंद्र में हमारी समस्या है, उस पे हम लोग फोकस कर रहे होंगे। इसका ये मतलब कहाँ होता है कि हम अपने राज्यों को भूल जाएं? वहाँ पे लोकसभा और विधानसभा चुनाव को साथ कराने की बात हो रही है, वहाँ पे मुख्यमंत्री भी हो गए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी। ये नहीं हो रहा है कि देश में एक राज्य तंत्र होने वाला है, कि देश को एक राजा थोप दिया जा रहा है। इनके मुद्दे ही मेरे को नहीं समझ आते। प्रोसीड। ओके माननीय लेट्स प्रोसीड। माननीय सदस्य, ठीक है, तो सदन की कार्रवाई हम माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। यहाँ पे बात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉसी फेडरलिज्म की हो रही है, बात स्टेट मुद्दों की हो रही है। जब भी हम ये बात करते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री जी और मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि स्टेट के मुद्दे कहीं भी नजरअंदाज नहीं किए जाएंगे। जबकि मैंने ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है, वहां राजभवन के माध्यम से कौन सिस्टम को हाईजैक कर रहा है? कौन जो बिल लोक हित में है, जो सरकार लोगों ने चुनी है, उसके कार्य को कौन कौन करने नहीं दे रहा है? इसका भी जवाब चाहिए। कौन कहीं ना कहीं कौन दिल्ली से सारे राज्य चला रहा है? प्रधानमंत्री जी अपने निर्देश पे पूरी अपोजिशन पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां चला रही, इसका विरोध करते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं इसी को और मजबूत करना चाहता है। जब प्रधानमंत्री जी की पार्टी, सर हम लोग सबको मौका देते हैं। हमारा संविधान ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव सब है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक कोई पार्टी सब पे रूल करेगा। करना तो आप यही चाह रहे हैं ना, कहीं ना कहीं, चाहे आप बोले चाहे ना बोले, राजभवन के माध्यम से सरकारों को इंटरफेयर करना वो क्या है? अच्छा मुझे बात नहीं पा रहे। तमिलनाडु में क्या हुआ, बोला बंगाल संसद में से क्या हुआ, वॉकआउट करने के दिल्ली में लिए? क्या हुआ फरवरी? सर हमने कब बोला आपको कि बाहर जाके आप बुराई करें अपने देश भारत की? हमने तो आपको कभी निर्देश नहीं दिया। अगर आप माननीय ऐसा बोलना सदस्य भी चाह रहे मुद्दे पे हैं रहिए। प्रधानमंत्री जी जब डाइवर्सिव पॉलिटिक्स खेलती तो वो क्या देश का बहुत सम्मान करता है? क्या विदेश में जाके भारतीय मूल के निवासियों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है? जब प्रधानमंत्री जी माननीय बात करते सदस्य हैं कि मुद्दे आप पे रहिए प्लीज। जब प्रधानमंत्री जी धर्म माननीय की नेता बात प्रतिपक्ष, करते हैं आप तो नेता गुस्सा नहीं होता? प्रतिपक्ष है, प्लीज वो आप सभा मुद्दे में से नहीं मत उठाया भटकिए, जा रहा सर मुद्दे टॉपिक, से आप मत वॉकआउट भटकिए कर देते हैं हर माननीय बारी। सदस्य। इलेक्शन मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पे इलेक्शन रहिए रैली में आप कौन सभी। बोलता है? आप ही बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। हम हमेशा भारत का सम्मान करते माननीय हैं। कौन ये सदस्य, ये बोलता है कि मुद्दा ही 70 नहीं सालों से है। कुछ नहीं हुआ? आप देश का माननीय सम्मान कर रहे हैं सदस्य इसकी वजह मुद्दे से। पे आप बाहर से देश का क्या सम्मान करेंगे जब अंदर से ही मुद्दे आपके पे रहिए पॉलिटिकल माननीय रैली में सदस्यगण। प्रधानमंत्री जी को गाली दिया सदस्यगण जाता है, कृपया किसी को करके मुद्दे व्यक्तिगत पे तरीके से ही टारगेट रहिए। किया जाता है, तब मुद्दे कहा पे जाती है आपको चर्चा कीजिए। डेमोक्रेटिक एक तरीके से राष्ट्र एक राजनीति चुनाव कर, पे कहाँ चर्चा जाता हो है रही आपका है, उस पे तरीका? अपने विचार विमर्श करिए। माननीय जब सदस्य, माननीय माननीय ममता बनर्जी मेंटेन द जी, जब डेकोरम ऑफ माननीय द मिसेस हाउस। गांधी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ अब शब्दों का माननीय इस्तेमाल होता सदस्य, है यू तब कहा कांट जाता है? नो प्लीज तो प्लीज ममता बनर्जी माइक कौन बंद से करना अलायंस की पड़ेगा। नेत्री हैं? फिर माननीय सदस्य, फिर माइक करना पड़ेगा आपका। आप ऐसे नाम नहीं ले सकते पॉलिटिशियंस का। आप जो मुद्दा है, आपके तर्क, आप अपने उसी मुद्दे पे अपने तर्क रखिए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जैसा कि हम जानते हैं,
हम अपने चर्चा के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री सदन को संबोधित करें। धन्यवाद सभापति महोदय। आज हमारी चर्चा हुई वन नेशन वन इलेक्शन पे। इसका मतलब है कि देश भर में चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे हमें बार बार चुनाव से होने वाली अस्थिरता से निपटने में मदद मिलेगी। जब बार बार सरकार को चुनावी मोड पर जाना पड़ता है, जिससे नीतिगत कामकाज पर असर पड़ता है, तो हमारा विकास रुक जाता है। ये केवल एक नीति ही नहीं, यह हमारी अर्थव्यवस्था को एक एक बड़ा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए एक बहुत ही अच्छी नीति साबित होगी। साथ में बात करें अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की जैसे महत्वपूर्ण नीतियां, उस पर हम अपना निवेश लगा सके, जिससे हमारे भारत के गरीब परिवार एवं जिन्हें इन शिक्षा और इन नीतियों की जरूरत है, उन्हें सर्व संपूर्ण लाभार्थ मिल सके। अलग अलग राज्यों में सुरक्षा बल की ड्यूटी और चुनावी ड्यूटी पे लगाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जहां तक की बात है हमारे आदरणीय विपक्षी गण की, क्या ही बात बोलूं मैं। एक तरफ हमारा विपक्षी गण कहता है कि हम गरीबों को हम गरीबों को उनके राइट्स देंगे, हम सारी चीजों ने देंगे, और दूसरी तरफ एक चाय वाले के प्रधानमंत्री होने पर हंसी उड़ाते हैं। क्या दोगलापन है। चलो कुछ भी है, आप तो है हमारे देश के विपक्ष, और हाँ, हम संविधान का और अपने लोकतंत्र का पूरा पालन करेंगे। आप जितना भी कीचड़ उछालिए हम पर, मैं ये बोलूंगी कि उस कीचड़ में ही कमल खिलेगा। हमारे भारत की तीव्रता और गति शक्ति हमेशा बढ़ेगी, हमेशा आगे रहेगी। मैं कहती हूँ जय संविधान, जय भारत, मेरा भारत सबसे महान है। धन्यवाद। But you are killing the democracy, you are killing the constitution. माननीय There सदस्य, is a federalism to this. इसलिए अपने पार्लियामेंट शब्दों का इसलिए चयन पार्लियामेंट बहुत बार में बोल चुका हूं इसलिए मैं। पार्लियामेंट में जय हिंद अपने लेके शब्दों का चयन सदन में ध्यान से करा करें। धन्यवाद सभापति महोदय। जी धन्यवाद। Honorable members, I may now declare that the House stands adjourned until 9:20. The House will meet again at 9:20, जिसमें माननीय मंत्री मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस will be tabling the bill one nation one election for voting. मैं आग्रह करता हूँ सभी सदस्य गणों से कि वो वक्त रहते समय पे सदन के अंदर प्रस्थान करें। एक बार लॉबीज बंद कर दी मतलब इस मीटिंग के अंदर, इस लिंक के अंदर मतलब हर किसी का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और आप अपने संसद में जो बिल होते हैं उन पे वोट करने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो सभी सदस्य गणों से आग्रह है कि कृपया करके 9:20 के लिए सदन में वापस आप वोटिंग करने के लिए आ जाइएगा। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड अंटिल 9:20। धन्यवाद। Honorable member, the discussion on the one nation, one election is now concluded. The Minister of Law and Justice, Kirti Jaiswal, may now reply the debate. आदरणीय सभापति महोदय, मैं सभी सदस्यगण तथा उनके मूल्यवान योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद करती हूँ। यह बिल हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थिरता, दक्षता और सार्वजनिक खर्च की बचत सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मैं अब इस सदन से अनुरोध करती हूँ कि इस बिल को अपनाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू।
Now, the question is that the bill provided for simultaneous election to the House of the People and the State Legislative Assembly, and for matters connected therewith, be taken into consideration. So, all the members who are in the favor of the motion, who are in the favor to pass the bill, may say aye. 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 All those against may say no. 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 Aye. Response noted. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it, and the response is negative. Honorable members, we shall now take up the motion regarding the reference of One Nation, One Election to a joint parliamentary committee for detailed examination. I now request the Minister for Law and Justice, Kirti Jaiswal, to present the motion. आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखती हूँ। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक समान चुनाव से संबंधित यह बिल और उससे जुड़े मामले संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाए, जिसमें कुल 30 संसद हो, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, ताकि समिति इस बिल के प्रावधानों की जांच करे और 3 माह के भीतर इस सदन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। महोदय, चुनाव सुधार के महत्व और व्यापक परामर्श की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव करती है। माननीय Honorable members, now let's take this motion for consideration. All those members who are in the favor of the motion to send this One Nation, One Election to a joint parliamentary committee may say aye. All those in the favor may say aye to send in the joint parliamentary committee. Aye. 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 Response noted. All those members who are against may say no. 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 Response noted. And the division is like this. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the motion is adopted as the vote suggests that this One Nation, One Election draft will be sent to a joint parliamentary committee, and I, as a speaker, will constitute this committee of JPC. Honorable members, now I may declare that the House stands adjourned until the further notice. धन्यवाद।